So today we are doing law, corporate law and other laws. Okay, इसका हम कर रहे हैं MTP 3. Fine. Starting with your case studies. Question number 1. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? State which is the correct statement as regard the maximum tenure for which an individual auditor in an auditor firm can be appointed in the Companies Act 2013. ये तो हमें बिना केस स्टडी भी पता है. क्या होगा अगर इंडिविजुअल है, सीए जो है अगर इंडिविजुअल है तो उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? अगर वो सीए फर्म है तो उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है? इंडिविजुअल का होता है 5 साल और सीए फर्म का कितना होता है? 10 साल. विच इज योर टू टर्म्स ऑफ 5 consecutive years, right? तो देखो both for 5 years. No. Individual auditor for more than 1 term and an auditor for 2 terms. More than 1 term होता है इंडिविजुअल का. नो. Individual auditor for 1 term for 5 consecutive years, right? And an auditor firm for the 2 terms of the 5 consecutive years. Very right. Individual auditor for more than 2 terms? No. Option number C. Now, correct answer is option C. देखो detailed answer and legal explanation. As per section 139, subsection 2 of the Companies Act 2013, listed companies and prescribed classes of unlisted public-private companies shall not appoint or reappoint. ना ही अपॉइंट करना चाहिए और ना ही रीअपॉइंट करना चाहिए एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 consecutive years. एक इंडिविजुअल है तो उसको आप एक टर्म से ज्यादा, और एक टर्म कितना 5 years का एक टर्म होता है, उससे ज्यादा आप अपॉइंट नहीं करोगे. और ऑडिट फर्म को कितना मोर देन 2 टर्म्स ऑफ द 5 consecutive years से ज्यादा आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते उसको. ओके, ना ज्यादा टाइम लेते हुए क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट से. State on the correctness of the procedures explained for an appointment of the first auditor of the company by Mr. Jack. क्या बोला है? Correctness of the procedures explained for the appointment of first auditor. जब फर्स्ट ऑडिटर हम अपॉइंट करते हैं कंपनी का तो उसने प्रोसीजर बताए होंगे मिस्टर जैक ने, तो उसकी करेक्टनेस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्या है क्या नहीं है और क्या जरूरी है. ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं एक बार. वैसे पढ़ने की उसमें भी जरूरत नहीं है, नीचे जो करेक्ट है उसका लिखेंगे, बट स्टिल देखो मिस्टर जैक के बारे में बात यहाँ पर हो रही है कि द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ओपन द मीटिंग बाय एड्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ अडहेरिंग टू द प्रोविजंस आउटलाइन द सेक्शन 139 140 141 of the Companies Act 2013. He emphasized the significance of appointing auditors who would uphold integrity and transparency in the company's financial reporting. Okay, ठीक है. उसके बाद क्या लिख रहा है उसने? As the discussion ensued, Ms. Sara, a diligent board member, raised a question regarding the tenure of the auditors. तो tenure वाला तुमने बात करी ली. Dr. Patel, seasoned members on the board, they inquired about the procedures for appointing the first auditor of the company. Mr. Jack explained that according to section 139 1 and 6 of the Companies Act 2013, the first auditor would be appointed by the board of directors. Is it correct? सबसे पहला पॉइंट क्या बोला उसने? ये बोला कि अपॉइंट होएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. बताइए. और वो भी within 30 days from the date of registration of the company. 30 days के अंदर अंदर इज इट करेक्ट और नॉट? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट स्पेसिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. 30 दिन के अंदर अंदर आपका क्या हो जाना चाहिए? अपॉइंट हो जाना चाहिए आपका ऑडिटर. ठीक है, तो इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट, इनकरेक्ट. ओके, बी. Requirement of Act specifies appointment of first auditor by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. देखो 139(6) कहते हैं the Companies Act 2013, for the companies other than government companies, the first auditor of the company shall be appointed by the board of directors within 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर from the date of registration of the company. If the board fails to appoint within 30 days, अगर board fail हो जाता है 30 दिन के अंदर नहीं कर पाता है, it shall inform the members. उसको members को बताना चाहिए, भाई board जो है नहीं कर पाया है, members को बताया. who shall appoint within 90 days. और उसके बाद जो members है उनको टाइम दिया जाता है अपॉइंट करने के लिए. कितने दिन में? 90 days में. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में किया जाता है, EGM.
Okay, at an EGM. So 30 days for board of directors and 90 days for the members. Selecting options mentioning advisors, CAs, ROC appointment. ROC has no role in appointing the first auditor. Registration of registrar of the company का कोई वो नहीं होता. बोर्ड के लिए 30 दिन, बोर्ड फेल तो मेंबर्स को मिलेगा EGM में 90 days. Okay. Now question number 3 MCQ क्या है? What is the requirement before appointing an auditor as per section 139 of the Companies Act? क्या होती है रिक्वायरमेंट अपॉइंटिंग इन ऑडिटर से पहले? ऑडिटर्स रिटन कंसेंट मिलना चाहिए, सर्टिफिकेट अप्रूवल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए से अप्रूवल मिलनी चाहिए, अपॉइंटमेंट बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी और रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमेटी. क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले एज सेक्शन 139(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? क्या होना चाहिए? किसने अपॉइंट करना है? बोर्ड ने या मेंबर्स ने? लेकिन वो अपॉइंट करने से पहले किसी को परमिशन तो लेनी पड़ेगी, अप्रूवल तो लेना पड़ेगा, है ना कि नहीं? किसी को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, किसी को रिकमेंड करना पड़ेगा. तो इनमें से क्या होएगा? रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट ऑडिटर का, अप्रूवल लेना है एमसीए से, अपॉइंटमेंट लेनी है आरओसी की, या फिर रिकमेंडेड फ्रॉम ऑडिट कमेटी, रिकमेंडेशन फ्रॉम द ऑडिट कमेटी. क्या करना है? अभी बोला था कि आरओसी का कोई काम नहीं है, एमसीए का क्या काम है ऑडिटर में? रिकमेंडेशन होती है ऑडिट कमेटी. ठीक है, ऑडिट कमेटी, लेकिन ऑडिट कमेटी बनाता कौन है? इंटरनल ऑडिटर बनाता है. ठीक है, तो लेकिन अगर ऑडिटर ही नहीं माना तो आप किसको अपॉइंट कर रहे हो? तो ऑडिटर रिटर्न कंसेंट एंड सर्टिफिकेट. ठीक है, ऑडिटर के पास और आपके पास ऑडिटर का क्या होना चाहिए? रिटर्न कंसेंट होना चाहिए. भाई वो भी खुश है या वो भी चाहता है आपसे आपके साथ जो है काम करना. ठीक है, और उसका सर्टिफिकेट. ऑप्शन ए. As per the second proviso of section 101 of the Companies Act 2013, before any appointment is made, the written consent of the auditor to such appointment and a certificate from the auditor confirming compliance with conditions specified in section 141 and rules must be obtained from the auditor. Auditor से ये मिल जाना चाहिए. यहाँ पर एमसी की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी? नहीं यार, नो प्रायर एमसी परमिशन इज नीडेड. फाइन. उसके बाद notice that written consent plus statutory certificate from ADT1 compliance is mandatory condition precedent to appointment. क्या नोटिस करें कि जो रिटन कंसेंट है, स्टैट्यूटरी का सर्टिफिकेट है, ADT1 के कंप्लायंस के लिए जरूरी होता है बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्यूरिंग द मीटिंग के वक्त सारा आस्क्ड whether a relative of the director can be appointed as the company's auditor. क्या डायरेक्टर का रिलेटिव ऑडिटर के थ्रू ऑडिटर के रूप में हम उसको अपॉइंट कर सकते हैं? व्हाट डज द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट विद रिगार्ड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इन दिस केस? बताइए. Relatives of the directors can be appointed. Relatives of the directors cannot be appointed as auditors under any circumstance. Relatives of director can be appointed as auditor if they pecuniary relationship with the company is below the prescribed threshold. अगर pecuniary यानी monetary relationship जो है वो prescribed limit से कम की है तो ओके. और डी है relatives of the directors can only be appointed with the registrar of the company's approval. देखो ये डी तो है ही नहीं बिल्कुल भी. ठीक है कि वो अपॉइंट हो सकता है आरओसी के थ्रू. आरओसी का कुछ नहीं है इसमें. कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन है. ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दोगे तो. और कोई भी सर्कमस्टांसेस में नहीं बन सकता, तो ये भी गलत है बेटा. ऑप्शन नंबर सी. हमें पता है प्रिस्क्राइब लिमिट होती है, उसके ऊपर अगर मतलब वो है तो आप जो है क्या कर सकते हो? अगर डायरेक्टर का रिलेटिव भी है तब भी वो अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी. क्यों? क्योंकि 143F कहता है पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और की एलिजिबल पर्सन. अगर कोई पर्सन है उसका रिलेटिव डायरेक्टर है उस कंपनी में या केएमपी है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए अगर उसको अपॉइंट करेंगे ऑडिटर से. लेकिन 141(3)D कहते हैं अगर रिलेटिव होल्ड करे सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट अप टू फेस वैल्यू ऑफ
1 लाख रुपीज फेस वैल्यू 1 लाख रुपीज अगर वो करता है तो इंडेटनेस का या गारंटी का विद इन द प्रिस्क्राइब पेक्यूलियरी लिमिट व्हिच इज 1 लाख फेस वैल्यू का सिक्योरिटी प्रीमियम को मिलाना नहीं है, ठीक है। फेस वैल्यू पे तो आर इवैल्यूएटेड तो इन दिस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आईसीएस क्वेश्चन ऑप्शन स्ट्रक्चर क्या है कि सी है कि थ्रेशोल्ड अगर बोल रखी है 1 लाख अगर बोल रखा है 1 लाख तक है तो ठीक है कोई बात नहीं, यू कैन बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा फेस वैल्यू या तो आप 1 लाख बेच दो या तो अपने शेयर्स को हटा लो, जो भी आपने पेक्यूनियरी रिलेशनशिप उनको हटा दो, अपना जो शेयर दो चेक कोई भी मॉनिटरी आपका बन रहा हो इंटरेस्ट कंपनी से उसको हटा दो, फिर बन जाओ ऑडिटर, नहीं तो फिर बनो ही नहीं, ठीक है। Assuming relatives are completely barred without regarding subclause the threshold, ये भूल मत जाना 1 लाख की वैल्यू होती है और बहुत इजी है, याद भी होगी, ठीक है। तो नहीं लूंगी मैं इस पे, याद रखना। सिक्योरिटी बेस वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख, इंडेटनेस 5 लाख से ज्यादा गारंटी और 1 लाख मतलब 1 लाख याद करो। देखो सिक्योरिटी 1 लाख, गारंटी 1 लाख, इंडेटनेस का 5 लाख होता है वैसे। इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ट्रांसफिगरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीक्स टू रिमूव एन ऑडिटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, अगर उनकी एक्सपायरी नहीं हुई टर्म तो फिर उससे पहले ही उनको क्या करना, उसको हटाना है, रिमूव करना है। व्हाट प्रोसीजर्स मस्ट बी फॉलोड एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज, है कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड कैन रिमूव द ऑर्डर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड ऑफ मीटिंग, खाली एक रेजोल्यूशन पास करने में बोर्ड मीटिंग में हम उसको रिमूव कर सकते हैं। बोर्ड मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी से पहले हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर हम उसको हटा सकते हैं। एंड इन्फॉर्म द रजिस्टर को बता दो। द मीट कंपनी मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें वो करनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी और पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। द बोर्ड मस्ट नोटिफाई द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पर कैग से हमें क्या को नोटिफाई करना होगा। इवन इफ ट्रांसफिगरेशन इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तब भी कैग को बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। तो बता दो इसके चल भी देखो यार रेजोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी कि सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया एंड ऑर्डर की छुट्टी, नो। अगर ऑडिट कमेटी इन्फॉर्म करेंगे रजिस्ट्रार को, उसको पहले प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी सीजी की, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, कुछ भी हो। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे हम ऑर्डर को निकाल रहे हैं उसकी टर्म से पहले, चाहे फर्म हो चाहे इंडिविजुअल हो, और फिर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। अगर सीजी मान गई है तो फिर हम क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे जनरल मीटिंग में, ठीक है। एज पर सेक्शन 141 रीड विद रूल 7 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014, एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म ओनली बाय बोर्ड रेजोल्यूशन पास एट बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ बोर्ड मीटिंग में, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म 82। सबसे पहले क्या, बोर्ड रेजोल्यूशन पास, ठीक है। एप्लीकेशन प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन, क्या एप्लीकेशन देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म 82 में विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, फिर हम सीजी के लेंगे, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग विद इन 60 डेज और रिसीप्ट ऑफ द सीजी अप्रूवल आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑफ द ऑर्डर। अगर यहाँ पर आ जाता कि पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो क्या करते, बोर्ड रेजोल्यूशन के बाद ही तो उन्होंने तय किया होगा कि हमें हटाना है, उसके बाद हम बात करेंगे सीजी की, फिर बात करेंगे हम स्पेशल रेजोल्यूशन की, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर्म 82 में हमने वो डाली विद इन 30 डेज, सीजी की अप्रूवल आई, फिर स्पेशल रेजोल्यूशन 60 डेज के अंदर आता है, याद करो 30 डेज 60 डेज, बोर्ड अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, देन स्पेशल रेजोल्यूशन। रिवीजन करेंगे बराबर से, फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड कितना 30 डेज, मेंबर्स इन ईजीएम 90 डेज, टेन्योर के लिए इंडिविजुअल 1 टर्म 5 साल का, फॉर्म में 2 टर्म 5 साल के, यानी कूलिंग पीरियड कितना आ गया और 5 साल का दोनों का। रिमूवल बिफोर टर्म क्या 30 डेज, फॉर्म 82 भरेंगे, सीजी से अप्रूवल लेंगे, ऐसा करेंगे 60 डेज में जनरल मीटिंग में। डिस्क्वालिफिकेशन क्या, रिलेटिव की सिक्योरिटी अगर 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू की, इंडेटनेस 5 लाख से ज्यादा की, गारंटी 1 लाख से ज्यादा की, तो हम उसको मना कर देंगे, यू कांट बिकम ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Ramanpreet want to ensure compliance with LLP Act regarding the number of designated partners. As per Act, what is the minimum requirement for designated partners that an LLP must have? बताइए मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है एलएलपी की, वेरी इजी क्वेश्चन, एटलीस्ट
2, कम से कम 2 तो हो डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, जिसमें से क्या होना चाहिए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो एज पर सेक्शन 7 द लिमिटेड क्या है यार, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident in India. Confusing designated partners with general partners मत कर देना, सारे designated partner must individual ह्यूमन बींग्स और नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, या तो वो इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसके नॉमिनीज होंगे। मिनिमम 2 designated partner, both must be individuals, at least one must be resident in India. Okay, now question number 7. What is the meaning of resident in India as per LLP? LLP एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था, 180 days, 182 days, 120 days, 60 days, क्या है? A person owning property in India, a person holding citizenship in India, नहीं यार, a person who has permanent residence in India, a person who has stayed in India for minimum of 120 days during the financial year. LLP के अकॉर्डिंग 120 दिन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का सी। As per explanation to 7(1) of the LLP Act 2008 as amended by the LLP Amendment Act 2021, resident in India का मतलब क्या है, जो इंडिया के अंदर 120 दिन या उससे ज्यादा रखा हो, यानी कि नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 182 डेज मत कर देना, 182 दे रखा हो तब भी 120 है एलएलपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज इफ राम इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर राम को बोल दिया गया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर था, उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया गया, व्हाट विल हैपन अंडर द एलएलपी एक्ट? राम कैन कंटिन्यू एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, राम इज इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड, राम स्टेटस एज डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रिव्यूड बाय द एलएलपी until then he can continue as a partner of the एलएलपी, ठीक है। उसके बाद लास्ट एलएलपी मस्ट नोटिफाई द रजिस्टर बट राम कैन कंटिन्यू टू दिस। बाबू इंसॉल्वेंट के लिए बात हो रही है, इंसॉल्वेंट मतलब वो डिस्क्वालिफाइड हो गया है एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो मस्ट नोटिफाई द रजिस्टर, नहीं, राम कंटिन्यू नहीं कर सकता, राम कैन कंटिन्यू नहीं कर सकता, राम स्टेटस एज डेजिग्नेटेड पार्टनर मस्ट बी रिव्यूड टिल देन ही कैन कंटिन्यू, नहीं इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, तभी के तभी उसको डिस्क्वालिफाई कर देते हैं, आप इंसॉल्वेंट हो गए, यू कांट बिकम डीपी। Under section 11, 22, 23 and the LLP rules, a person who has been adjudged insolvent and whose application for insolvency is pending, या तो उसकी वो pending है या फिर उसको बोल दिया गया वो insolvent है, वो immediately disqualify हो जाता है from being appointed or continuing as a designated partner or partner of the LLP. पार्टनर भी नहीं बन सकता, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी नहीं बन सकता, कब नहीं बन सकता, या तो वो उसकी एप्लीकेशन जो है अभी तक पेंडिंग हो या फिर उसको इंसॉल्वेंट ही एडजस्ट कर दिया गया हो। और ये मत सोचना इंसॉल्वेंसी में ग्रेस पीरियड मिलता है, कुछ नहीं मिलता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक होती है और इमीडिएट होती है। नाउ स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, नहीं केस सिनेरियो 3 भी तो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट, जीसीए की बात हो रही है 1897, उसके अकॉर्डिंग was the filing of XYZ limited appeal on October 3rd, 2025 considered valid? हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा क्या हुआ था अक्टूबर 3 को, कौन सी अपील के बारे में बात कर रहे हैं। XYZ Limited was required to file an appeal with the National Company Law Tribunal NCLT से under a statutory regulation that prescribed filing deadline of October 2, 2025, ठीक है, उसको 2 अक्टूबर तक भरना था, लेकिन 2 अक्टूबर तो आपको पता है पब्लिक हॉलीडे होता है, द कंपनीज लीगल काउंसिल डिड नॉट फाइल द अपील ऑन दैट डे, और उस दिन उन्होंने नहीं भरा, अनअवेयर ऑफ द लीगल प्रोविजंस कंसर्निंग डेडलाइंस फॉलिंग ऑन द हॉलीडे। ऑफिस रीओपन ऑन October 3 एंड द लीगल काउंसिल फाइल द अपील ऑन द सेम डे, यानी कि उसने 3 अक्टूबर को भर दिया। अब आपको बताना है यस because the office was closed on October 2 and filing on the next open day is valid. No, because the deadline was October 2 and it was not adhered to. Yes, because only the tribunal provided an extension. No, because the legal counsel failed to check whether the holidays impact the deadline. बताइए। हम क्या बोलते हैं, अगर संडे आ गया या कोई भी अगर नॉर्मल हॉलीडे आ गया तो उसका नेक्स्ट वर्किंग डे हम वो काम
कर सकते हैं, राइट। तो यानी कि यस, क्योंकि ऑफिस जो है वो क्लोज है तो हम 3 अक्टूबर को भर सकते हैं। सिंपल सी बात है, डेडलाइन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करेगी एक्सटेंशन नहीं। As per Section 10 of the General Clause Act 1897, computation of time where any act or proceeding is directed or allowed to be done, ठीक है, जिसको अलाउ किया गया है, जो होएगा और टेकन इन एनी कोर्ट और ऑफिस ऑन अ सर्टेन डे और within a prescribed period, then if the कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज ऑन दैट डेट, अगर जो कोर्ट है या ऑफिस या कुछ भी है, अगर वो उस दिन क्या हो, बंद हो, तो वो लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड या फिर जो लास्ट डे प्रिस्क्राइब पीरियड उस दिन बंद होता है। एक्ट ऑफ द प्रोसीडिंग जो है हम उसको कंसीडर करेंगे डन और टेकन इन ड्यू टाइम, इफ इट इज डन और टेकन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स ऑन विच द कोर्ट और ऑफिस वाज नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड्स ऑन विच द कोर्ट और ऑफिस इज ओपन। जब ओपन होएगा हम तब कर देंगे अगले दिन, ठीक है। अब हो सकता है कि संडे के बाद कुछ और मंडे को जो है गजेटेड हॉलीडे आ जाए तो ट्यूसडे को मान लेंगे। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in the property dispute involving XYZ Limited was the method of measuring the distance valid। हमें डिस्टेंस का तो पता है, फटाफट से बता दो, डिस्टेंस का तो हमें रट रखा है, क्या होता है, in a straight line on a horizontal plane। Yes, because it is followed a natural curvature of the land नहीं। Yes, if the parties mutually agreed। एक सेकंड, उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है तो पढ़ ले। In a separate matter, XYZ Limited was involved in the property dispute where it needed to measure the distance between the two boundaries for the evidence submission। Clear, उन्होंने क्या किया, governed by Central Act enacted this required distance to be measured on the straight line along the horizontal plane unless otherwise specified। However, the company measured the distance by tracing the natural curvature in the land instead of adhering to the prescribed method। लो दे ही रखा है तुमने, पर उसने किसने किया, कर्वेचर में कर दिया, कर्व में कर दिया, उसने बोला वो था, कर दिया कर्व में। क्या आएगा, yes because it followed the natural curvature of the land, no because distance under central act must be measured in a straight line on a horizontal plane unless specified otherwise। yes if the parties mutually agreed, no because the measuring methods are relevant to the dispute। नहीं भाई, बी आएगा इसका, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा हम याद रखते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस सेक्शन नंबर 11 का है, इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस पर्पस ऑफ द सेंट्रल एक्ट द डिस्टेंस शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक कोई और इंटेंशन अपीयर ना हो रही हो, कब कैसे मेजर होगा, स्ट्रेट लाइन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ऑलवेज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, if the regulation explicitly requires measurement by natural terrain। ओके, देखो अब थोड़ा सा पढ़ो ढंग से, क्या बोला है, measurement by natural terrain would XYZ private limited method of measuring the distance along the land's natural curvature be valid। अगर रेगुलेशन रिक्वायर है, अगर रेगुलेशन में रिक्वायर, रेगुलेशन कह रहा है कि मेजरमेंट जो है वो नेचुरल टेरेन से होगा, नेचुरल टेरेन से होगा मतलब जिस शेप का है उसी शेप से, अगर वो कर्वेचर नेचर का है तो कर्वेचर नेचर में होएगा, ना कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऐसा कौन बोल रहा है, रेगुलेशन कह रहा है। तो क्या फिर हमारा जो एक्सक्लूसिव प्राइवेट लिमिटेड है उसने सही किया। unless specified otherwise, unless specified otherwise, unless specified otherwise, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हमें जिस शेप का है, जिस शेप के टेरेन है, जिस शेप का है उसी में करेंगे, तो यस इट इज करेक्ट, हम फिर कर्वेचर नेचर का ही करेंगे, ठीक है। तो यस बिकॉज द स्पेसिफिक रेगुलेशन वो टेक प्रेसिडेंस ओवर द जनरल रूल, फिर जो हमारी रेगुलेशन है वो डोमिनेट करेगी। नो बिकॉज द सेंट्रल एक्ट यूनिवर्सली मैंडेट स्टेट लाइन नहीं। यस प्रोवाइड द स्पेसिफिक रेगुलेशन वाज एनैक्टेड ओनली बाय स्टेट रेगुलेशन। नो प्रोवाइड स्पेसिफिक रेगुलेशन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। ऐसा कुछ नहीं, किसी को अप्रूव करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले बाद में कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसने कह दिया कह दिया। जनरल क्लॉज एक्ट का तो जनरली ये माना जा रहा है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहा गया है तो हम तो उसको मानेंगे ना।
Section 11 GC states that unless a different intention appears, further under statutory interpretation principles generally are specially bus non-derogant specific law or regulation overrides the general rule over the General Clause Act 1897. Believing JCA override specific situation ऐसा नहीं होता. Question number 12. Associate company. In relation to another company means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company which has influence and includes joint venture company. Here the word significant influence means significant influence. फटाफट से बता दूंगा significant influence यानी 20% of the total voting power. Section 26 of the Companies Act, associate company means a company in which the other company has a significant influence. Defines क्या करता है? Significant influence is control at least 20% of the total voting power or control of or participation in the business decision under an agreement. At least 20% of the voting power. Subsidiary company exceed 50% total voting power. ठीक है, होती है subsidiary. Now question number 13. कितना बड़ा है? Indus Labs Limited and Magica Biotech Limited issued preference shares with distinct dividend payment structure. उन्होंने अलग अलग डिविडेंड देने का वो किया. Indus Pharma Labs Limited stipulates that the preference dividend may be amount such as 5 lakh in 1 year, payable to the preference shares before any payment are made to the ordinary shares. Preference वालों को पहले दे देंगे. In contrast, Magica Biotech Limited specifies that the amount payable as a preferential dividend is calculated at a rate of 8% of the nominal value of the share. How do Indus Lab Limited and Magic Biotech Limited differ in the payment and preferential dividend? Is it valid mode of the payment of the dividend under the Companies Act? दो कंपनीज है, दोनों डिविडेंड दे रही है पर अलग अलग तरीके से दे रही है. ठीक है, ओके. नाउ एक जो है उसका फिक्स रेट है 8% पे देंगे, और दूसरा जो हमारा फार्मा लैब लिमिटेड है, इंडस फार्मा, वो क्या कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपीज ही देंगे, स्टिपुलेटेड देंगे, पेबल टू प्रेफरेंशियल्स बिफोर एनी पेमेंट मेड टू द ऑर्डिनरी शेयर्स. ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से. देखो, इंडस लैब पे डिविडेंड एट अ फिक्स रेट. जो इंडस वाला है वो फिक्स रेट पे दे रहा है, व्हाइल मैजिक बायोटेक पे एक फिक्स अमाउंट, मैजिक का फिक्स अमाउंट दे रहा है. इंडस फार्मा लिमिटेड रेट सच एज 5 लाख इन 1, और यहाँ पर जो मैजिक का वाला है वो 8% दे रहा था, तो पहले ही गलत हो गया. उसके बाद इंडस लैब पे फिक्स अमाउंट, इंडस वाला आपको फिक्स अमाउंट दे रहा है, और मैजिक बायोटेक जो वो फिक्स रेट दे रहा है. तो ये ठीक है, बोथ कंपनीज पे फिक्स डिविडेंड फिक्स रेट, पे डिविडेंड फिक्स रेट, और दोनों जो है वो फिक्स अमाउंट दे रहे. तो बेटा यही तो करेक्ट होगा ऑब्वियसली. वो फिक्स अमाउंट दे रहा है, वो फिक्स रेट दे रहा है, और ये इट्स वैलिड मोड ऑफ द पेमेंट. चाहे फिक्स रेट दो, फिक्स अमाउंट दो, डजंट मैटर, दोनों वैलिड आपके लिए. ठीक है. 13B. Under Section 43 of the Companies Act 2013, preference shares capital carries a preferential right with respect to the payment of the dividend, which may be either fixed amount या fixed amount हो, यहाँ पर कोई भी fixed rate हो सकता है. Both modes of expressing preferential dividend are fully valid under the. मत मानना कि खाली only भी preferential rate जो है वो सही होगा. Fixed absolute amount are also equally valid. Okay. 14th. क्या कह रहा है 14? Techwise Limited, Indian company, wishes to make a donation of USD 36,000. Fine. For the creation of chair in reputed educational institute. chair का अलग से आया था, पता है? खैर, चलो डोनेशन दे रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लोकेटेड अब्रॉड. द कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर. जो कंपनी है उसका फॉरेन एक्सचेंज जो अर्निंग जो है 3 फाइनेंशियल ईयर्स की वो है इतनी. What action should Techwise Limited take regarding this donation? ठीक है, फेमा के अंदर Techwise can proceed with the donation without seeking prior approval. उसको लेनी पड़ेगी आरबीआई से बिफोर मेकिंग द डोनेशन. ठीक है, और क्या बोल रहा है? उसको लिमिटेड डोनेशन की इतनी टू अवॉइड सीकिंग प्रायर अप्रूवल. और क्या है? Techwise Limited should seek approval from the Ministry of Finance before making the donation. तो 50 लाख उसका लिमिटेशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर का है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है, कि आरबीआई का है, कि क्या है? विदाउट सीकिंग है. क्या है बताओ? 36,000 USD डोनेशन देना है उसको.
और उसका वो भी दे रखा है, हमें अर्निंग्स भी दे रखी है। डोनेशन देने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसको आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। As per Schedule 3, term Item 4 of FEMA, current account transactions, donation for creation of chairs in reputed education institute abroad exceeding 1% of the FEMA earning during the previous 3 years, or USD 5 lakh, whichever is less, requires the prior approval of RBI. बोला था मैंने, स्पेसिफिकली लिखा था चेयर के बारे में। तो 1% ऑफ दी अर्निंग्स कितनी है? 1% ऑफ 35 लाख, विच इज 35,000। 35,000 का कहते तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा है 35,000 से या 5 लाख से 50 लाख से, तो फिर क्या करना पड़ेगा? देनी पड़ेगी। और उसकी 36 थी, 35 नहीं, 35,000 से ज्यादा हो गई, तो इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। मार्केट एज स्टाफ इम्पोर्टेंट। 1% ऑफ अर्निंग्स, और वो कौन सी वाली? 3 इयर्स की फाइनेंशियल अर्निंग्स फॉरेन एक्सचेंज का, और 50 लाख या 5 मिलियन बोल लो आप, ठीक है, 50 लाख यूएसडी या 5 मिलियन यूएसडी, ठीक है, इन दोनों से वो भी लेस होगा। नाउ 15, क्या बोला है मिस्टर रामेत? एन इंडियन रेसिडेंट वांट्स टू सेंड अ गिफ्ट यूएसडी 1.5 लाख का to his friend in the US and donate 90,000 to a charitable organization abroad in the financial year। अब वो आपके पास आया है, एलआर की स्कीम है, फिर मैं बताओ क्या करेक्ट है। बैंक कैन प्रोसेस बोथ द ट्रांजेक्शन, गिफ्ट्स एंड डोनेशन आर परमिटेड। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट जो 2.5 लाख से कम है या लिमिट में है उसकी। प्रोसेस ओनली वन ट्रांजेक्शन, क्योंकि जो कमाइंड है वो एक्सीड करती है प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितनी है? क्या उससे एक्सीड कर रही है? तो बी तो अपने आप ही हट गया। बैंक कैन नॉट प्रोसेस ट्रांजेक्शन इज लिमिटेड विद गिफ्ट एंड डोनेशन इज नॉट परमिटेड इन द। क्या डोनेशन अगर परमिटेड नहीं है? ऊपर तो परमिटेड थी, तो ये तो हमेशा कटी गया। वैसे भी होती है, गिफ्ट वगैरह दे सकता है, ऐसे थोड़ी ना गिफ्ट नहीं दे सकता है दूसरों को, बाहर की दो अगर है कोई। बैंक मस्ट ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई बिफोर प्रोसेसिंग दिस रेमिटेंस। यहाँ पे उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। बताओ ए और डी क्या है? 2.5 लाख के अंदर आ रहा है, ऑब्वियसली इट इज अलाउड, ठीक है, एलआरएस के अंदर। अंडर लिबरलाइजेशन रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई अंडर FEMA 1999, resident individuals are followed to freely remit up to USD 2,50,000 per financial year for any permissible current and or capital अकाउंट ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग गिफ्ट्स एंड डोनेशंस। तो गिफ्ट कितने? 1.5 लाख का, वो 90 का, तो यूएसडी 240 बन रहे हैं, विच इज विद इन 250। इसके लिए आप कर सकते हो। आरबीआई की कोई जरूरत नहीं है अप्रूवल की। ओके, नाउ डिस्क्रिप्टिव पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1A, M&O Limited has the following equity share capital। आपको क्या करना है? whether the company can change the right of its shareholders, क्या जो कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर्स के राइट को बदल सकती है। whether the dissenting shareholders can apply to the tribunal, और जो dissenting shareholders है, जो मना कर रहे हैं कि भाई नहीं 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 ये सब नहीं होना चाहिए, क्या वो ट्रिब्यूनल के पास जाके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं? टीचर क्या बोलते हैं, इस बच्चे ने मारा। ओके, तो ये हमसे बोल रहे हैं कि हमें जो है, अगर हम राइट्स शेयर के चेंज करें, शेयर होल्डर के चेंज कर रहे हैं, तो कैसे कैसे अलाउड है, क्या ये कंपनी अलाउ है? और अगर डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स यानी माने जो नहीं है, शेयर होल्डर्स मना कर रहे हैं, वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। तो अगर आपको याद आ रहा हो कुछ मोटा मोटा सेक्शन 48, और सेक्शन नंबर याद नहीं आया हो तो कुछ अगर प्रोविजन याद आए, देयर आर 3 कंडीशंस व्हिच हैव टू बी मेट इफ यू वांट टू वेरी इन शेयर होल्डर्स राइट। अगर आपको वेरिएशंस चाहिए शेयर होल्डर्स के राइट में, तो आपको 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, कंपनी के मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में क्या हो, मंजूरी दे रखी हो, या ऐसा ना लिख रखा हो कि वो प्रोहिबिट है, एकदम अलग से लिख रखा हो कि दैट व्हाट द कंपनी एंटाइटलिंग इट टू वेरी सच क्लास राइट, ठीक है, तो वो प्रोहिबिट ना कर रखा हो उस शेयर को।
there should be provision in the memorandum or articles of the company entitling it to vary such class rights. In the absence of same, the term of issue of the shares of that class not prohibiting such a variation. अगर मना कर रखा है तो आप फिर ये नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते? आप वेरिफिकेशन वेरिएशन नहीं कर सकते. ठीक है. उस और या फिर पर्टिकुलर किसी को मना कर रखा हो या फिर आपको अलाउ नहीं कर रखा हो, वही मतलब प्रोहिबिट कर रखा हो. सेकेंड कंडीशन, व्हाट्स द सेकेंड कंडीशन? सेकेंड कंडीशन says कि एटलीस्ट 75% ऑफ द शेयर जिनको इशू किया गया था उस क्लास को रिटर्न कंसेंट दे रखी है या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू हमें 75% अप्रूवल्स मिल जाए ऑफ द वेरिएशन फॉर द वेरिएशन. और अगर उस वेरिएशन से दूसरे किसी शेयर होल्डर को या दूसरे किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर का अफेक्ट हो रहा है, उनके राइट को अफेक्ट हो रहा है, तो उनसे भी हम 3/4 क्या करवाएंगे? यही करवाएंगे. उनसे भी 3/4 से कंसेंट लेना पड़ेगा. ये 75% कह लो, उनसे भी लेना पड़ेगा. of such other class of shareholders shall also obtain the consent. और उन पे भी वो प्रोविजन ऑफ सेक्शन अप्लाई हो जाएगा. थर्ड कंडीशन, अगर होल्डर्स 10% या उससे ज्यादा ऐसे हैं जो नहीं मान रहे, नहीं ले रहे कंसेंट और वो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं वो? कि वेरिएशन ना हो या वोट नहीं दे रहे वो फेवर में, तो दे मे अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल. वो ट्रिब्यूनल जा सकते हैं उनका मन हो तो टू हैव द वेरिएशन कैंसल, की वेरिएशन कैंसिल कर दीजिए. ठीक है. और जब वो एप्लीकेशन करी गई तब तक आपको कोई इफेक्ट नहीं डालना. मतलब क्या? वेयर एनी सच एप्लीकेशन इज मेड द वेरिएशन shall not have effect unless and until it is confirmed by the tribunal. जब तक ट्रिब्यूनल हाँ नहीं करेगा कि yes you can do your वेरिएशन, तब तक वो स्टॉप हो जाएगा. कंपनी नहीं कर सकती वेरिएशन. पहले ट्रिब्यूनल बातचीत करेगी. ट्रिब्यूनल के पास कोई कंप्लेंट चली गई किस चीज की? 10% और मोर, नॉट लेस देन 10%. ठीक है. अगर 10% से कम लोग हैं फिर तो नहीं, लेकिन येस अगर 10% है या 10% से ज्यादा लोग मना कर रहे हैं फिर वो एक मटीरियलिटी आ जाती है उधर. और फिर आपको क्या करना पड़ता है? मतलब ट्रिब्यूनल को फिर देखना आता है, बीच में घुसना पड़ता है. अब यहाँ पर देखा एमएनओ लिमिटेड में क्लास 1 है इक्विटी शेयर्स के 3 लाख इक्विटी शेयर्स 10 ईच के 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 1 शेयर. सेकंड है इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच 1 वोटिंग राइट फॉर एवरी 5 शेयर्स. 5 lakh के at the time of the issue the company has fulfilled all the conditions relating to the issue of equity share capital. The company wants to vary the voting right of the class 2 equity shares 1 voting right for every 5 shares to 1 voting right to every 10 shares. एक voting right 10 shares. पहले क्या था? एक voting right for every 5 शेयर्स. कि जिसके पास 5 शेयर्स होंगे उसको एक वोटिंग राइट मिलेगा. बोले जिसके 10 शेयर्स होंगे ना उनके को एक वोटिंग राइट मिलेगा. द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल जो है वो उनको कंसेंट दे देती है. यानी फर्स्ट कंडीशन वो तो फुलफिल हो गई कि जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उन्होंने कंपनी को क्या दे रखी है? परमिशन दे रखी है द पार्ट टू मेक द वेरिएशन. होल्डर्स ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स हैव देयर कंसेंट इन द राइटिंग ऑफ द वेरिएशन. यानी कि जो हमारे 50,000 है उसमें से 40,000 तो बोलते हैं यू कैन गो अहेड. आउट ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स होल्डर्स 4,500. देख लो अब इसमें से कितने बन रहे हैं. 10% से लेस बन रहे हैं, ऑब्वियसली 5,000 से कम है. तो शेयर्स वांट टू अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द कंपनीज एक्शन. और 4,500 उसमें से कह रहे हैं हमें तो ट्रिब्यूनल जाना है, हम रुकवाना है. क्या रुकवाना है? कंपनी का एक्शन रुकवाना है. ठीक है. अब क्या करें? 40,000 शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है क्लास 2 के पास, जो क्या बोल रहे हैं? कंसेंट दे रहे हैं. ठीक है. 40,000 है 50,000 में से, विच मीन्स 80%, विच इज मोर देन ऑब्वियसली 75%. यानी कंसेंट मिल गया. ठीक है. कंसेंट मिल गया. 80% से 75% से ज्यादा है. और क्या क्या क्लास 1 इससे अफेक्ट हो रही है? क्लास 1 इससे अफेक्ट हो रही है क्या?
नहीं हो रही, कहाँ लिखा है कुछ नहीं हो रही ना, तो इसलिए क्लास 2 के शेयर होल्डर्स की वजह से क्लास 1 के शेयर होल्डर इफेक्ट नहीं हो रहे, उनके राइट को कुछ नहीं हो रहा। अब डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कितने हुए, 50,000 माइनस 40,000 विच इज 10,000। 10,000 है, जिसमें से क्या बोल रहे हैं, 4,500 बोल रहे हैं, हम तो जाएंगे तुम्हारी शिकायत लगाने। अब 50,000 का 10% इज योर 5,000 विच इज ऑब्वियसली लेस देन 4,500, तो हेंस दे कैन नॉट इंटेंड टू अप्लाई टू ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसलिए वो नहीं जा सकते ट्रिब्यूनल, क्यों, क्योंकि 10% से कम है। चलो आ जाओ। As per Section 48 of the Companies Act 2013, variation of shareholders' rights, Section 48 क्या कहता है, Part to vary rights, Section 48(1), where the share capital is divided into different classes, जहाँ पे जो शेयर कैपिटल वो अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है। राइट्स अटैच टू एनी क्लास में बी वेरीफाइड, अगर तो जो राइट्स है जो अटैच हो रखे किसी भी क्लास से, अगर वो वेरी करने हैं, अलग करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन इज कंटेन्ड इन एमओए और एओए। आपको सबसे पहले तो प्रोविजन दे रखा होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, या फिर इन द एब्सेंस ऑफ सेपरेशन। अगर एब्सेंस है यानी कि प्रोविजन नहीं है, तो इफ वेरिएशन इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द टर्म ऑफ इशू, या फिर वो प्रोहिबिट ना हो, या तो दे रखा हो कि अलाउड। ठीक है, और सेकंड क्या, कंसेंट इन राइटिंग of holders of at least 3/4 या 75% of the issued shares of that class is obtained, या फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया हो, सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ दैट क्लास। अब प्रोवाइजो क्या है इसका, कि अगर वैल्यूएशन जो है एक क्लास की वजह से दूसरी क्लास इफेक्ट हो रही है, तो कंसेंट ऑफ द 3/4 ऑफ दैट अदर क्लास मस्ट आल्सो बी ऑब्टेन, तो दूसरी क्लास का भी हमें 3/4 कंसेंट लेना पड़ेगा। सेकंड, right of dissenting shareholders to apply the tribunal, Section 48(2). Holders of not less than 10% of the issued shares of that class who did not consent or vote in favor of variation, या तो वो consent नहीं दे रहे हैं, उनके फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं, 10% नॉट लेस देन 10% में अप्लाई टू एनसीआरटी विदिन 21 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। और द कंसेंट और रेजोल्यूशन वेरिएशन shall not take effect unless confirmed by the NCLT, जब तक एनसीएलटी अप्रूव नहीं कर देती तब तक वेरिएशन नहीं होगा। एप्लीकेशन टू द फैक्ट्स, देखो क्लास 2 के शेयर कितने, 50,000 है, कंसेंट ऑब्टेन 40,000 के 80% मिल गए। डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स कितने हैं, 20%, जिसमें से कितने 4,500 ही बोल रहे हैं भाई कि हम तो एनसीएलटी जाएंगे। वेरिएशन ऑफ द राइट, यस एमएनओ लिमिटेड कैन वेरी वोटिंग राइट बिकॉज एमओए एओए भी एम्पावर करता है, और कंसेंट 80% की भी मिल गई है। और एप्लीकेशन बाय डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स, नो, क्यों, होल्डर्स ऑफ 4,500 शेयर्स कैन नॉट बी अप्लाइड टू ट्रिब्यूनल, क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड टू अप्लाई टू एनसीएलटी इज 10% of 50,000 which is 5,000, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ 9% that is 4,500, they fail to meet the 10% statutory threshold. Okay, उस स्पेसिफिक क्लास की लेना, टोटल शेयर की मत लेने लगना, पहले बता रही हूँ 10%। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1B, 5 मार्क। BBQ लिमिटेड with its registered office in हैदराबाद, हैदराबाद में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसकी 2 ब्रांच ऑफिस है, एक है दिल्ली में और एक है लंदन में। ओके, इंटरनेशनल। द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द ब्रांचेस are recorded and all books of accounts are maintained in the branches. The branch account of the Delhi branch sent monthly and branch account of London sent quarterly summarized trial balance, profits and loss accounts in the balance sheet to the Hyderabad office. One of the assistants of the audit team, Mr. Naveen, raised the issue that the branches of the company maintain its book and records at branch, so it defaults or not maintaining the proper books of accounts at the registered office, वो registered office में तो ढंग से कर ही नहीं रहे हैं, वो तो ये कह रहा है। Mr. Naveen further objected to the fact that the London branch sent their summarized returns on the quarterly basis, तो summarized return दे रहे हैं, summarize सब कुछ दे रहे हैं, वो भी quarterly basis पे instead of monthly basis. You are requested to analyze and decide whether the validity of the both objections, जो उसने objections लगाई है नवीन ने, प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द बुक्स पे, और समराइज रिटर्न्स वो भी कौन सा, क्वार्टरली पे, रेफरिंग टू द प्रोविजन द कंपनीज एक्ट। सबसे पहले बता दूं मेरे सेक्शन कौन सा लगेगा, बताओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स।
तो उसका सेक्शन कौन सा है? 128। क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 says every company to prepare and keep the books of accounts and other relevant books and papers and financial statement at its registered office. registered office में रखो क्या क्या क्या? प्रिपेयर भी वहीं करो, कीप करो, रखो वहीं पे। कहाँ पर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी कहाँ पे रखो? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो। क्या क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई भी रेलेवेंट बुक्स, पेपर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन प्रोवाइड दैट all or any of the book of the account may be kept at such other place in India as the BOD may decide। जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर डिसाइड कर लिया वो वहाँ पे भी रख सकते हैं। लेकिन in India, where such decision is taken by the board, the company shall within 7 days thereof file with the registered notice in writing as per Rule 2A of the Companies Account Book 2014 गिविंग फुल एड्रेस ऑफ दैट अदर प्लेस। आपको क्या बोलते हैं? पूरा का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा। ओके, और कितने दिन में? कितने दिन में करना होता है ये? 7 डेज में। ठीक है, 7 डेज में फाइल करना होता है रजिस्ट्रार के पास नोटिस इन रिटन फॉर्म। रूल 2A। और फॉर्म कौन सा होता है? AOC 5। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर क्या है? हैदराबाद में है, वहां पे मेंटेन करो। लेकिन वो मेंटेन कर सकता है कहाँ पर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर डिसाइड करें जहां पे भी इंडिया में, फुल एड्रेस दे दो, 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर को बता दो, तो आप रख सकते हो। ठीक है, अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो भाई यहाँ पे तो उसने कुछ नहीं किया, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्शन क्या है? सही है, रजिस्टर्ड ऑफिस में रखो जब कुछ हुआ ही नहीं है, जब बोला ही नहीं है कि मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ किया ही नहीं है। तो अब दूसरा क्या था कि ब्रांच ऑफिस क्या बोलते, जब कंपनी है वो ब्रांच ऑफिस में या आउटसाइड द इंडिया रख रही है ना? तो देखो, लंदन ब्रांच जो समराइज रिटर्न दे रही है ऑन क्वार्टरली बेसिस इंस्टेड ऑफ मंथली बेसिस। दूसरा ऑब्जेक्शन ये था इसका। तो अब बुक्स जो है वो कह रहे हैं कि भाई क्वार्टरली बेसिस पे क्यों दे रहे हो? तो अगर आपको पता हो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, कौन बोलते हैं? कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स should be kept at branch office and proper summarized return are sent on periodical basis by branch office to the company at its registered office or other place। ठीक है, periodical basis पे देना चाहिए। क्या वो नहीं कर रहा? क्या वो समराइज रिटर्न नहीं दे रही? दे रही है ब्रांच, क्वार्टरली पे दे रही है। तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन है भाई? उसके ऑब्जेक्शन यहाँ पर इनवैलिड है। दूसरा इनवैलिड है, पहले वाला वैलिड था। ठीक है, देखो, as per section 128 of the Companies Act 2013, every company shall prepare and keep at its registered office proper books of account। उसको क्या करना चाहिए? अपना प्रिपेयर करना चाहिए, कीप रखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। कहाँ पे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। however all or any books of accounts may be kept at such other place in the India। लेकिन सारी या कुछ जो है बुक ऑफ अकाउंट्स को आप कहीं और भी रख सकते हो इंडिया के अंदर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है। प्रोवाइडेड जो फॉर्म AOC 5 है उसको फिल करो और ROC को दे दो 7 दिन के अंदर अंदर। और 188(2) क्या कहता है? रीड द रूल फॉर द कंपनीज अकाउंट रूल 2014 वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जहाँ पे अगर कंपनी का कोई भी ब्रांच है, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया से बाहर हो, इट शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद सेक्शन 128(1)। वो मान लिया जाएगा कि 128(1) पूरा कर रहा है, पूरी कर रही है वो कंपनी, अगर प्रॉपर बुक्स रिलेटिंग टू ब्रांच, अगर सही से जो बुक्स है प्रॉपरली आपने बुक्स जो ब्रांच की है, ब्रांच की ट्रांजेक्शन की वो मेंटेन कर रखी होगी ब्रांच ऑफिस में ही। और अगर समराइज रिटर्न्स को आप भेज रहे हो ब्रांच ऑफिस बाय सेंड बाय द ब्रांच ऑफिस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस और अदर प्लेसेस एट द पीरियोडिक इंटरवल्स, अगर पीरियोडिक इंटरवल्स पे समराइज रिटर्न्स को भेज रहे हो
ठीक है, फॉर अ ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया से लंडन ब्रांच से प्रॉपर समराइज रिटर्न मस्ट बी सेंड टू द रजिस्टर्ड ऑफिस एट अ क्वार्टरली इंटरवल्स। तो ऑब्जेक्शन 1 क्या था? मेंटेनिंग बुक्स एट द ब्रांच ऑफिस इंस्टेड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इनवैलिड था ये या वैलिड था? ऑप्शन 1 इज वैलिड। क्यों वैलिड? क्योंकि इसने वो तो किया ही नहीं। क्या नहीं किया इसने? 128(1) का तो कंप्लाई किया ही नहीं कि 7 दिन के अंदर अंदर तुमने रजिस्ट्रार को नहीं बताया, तुमने मतलब वो फॉर्म नहीं भरा, ये OC5 वगैरह वो सब तो तुमने किया ही नहीं मैम। बट क्या बोलते हैं 128(2) में तो ये लिखा है कि चाहे क्या बोलते हैं इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो अलाउ होता है। दिल्ली को भी तो अलाउ होना चाहिए ना बेटा, ऐसा नहीं है। वो दिल्ली में अलाउ हो जाएगा अगर तुम परमिशन लोगे तो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल वो आ जाता है, थोड़ा सा फैक्ट, क्योंकि जो लंदन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल टू कीप द कोर ऑल बुक्स ऑफ द इंडियन कंपनी इन लंदन। ठीक है, तो therefore लंदन ब्रांच इज ओनली कीपिंग इट्स ओन ट्रांजेक्शन बुकिंग एंड सेंडिंग क्वार्टरली रिटर्न्स, बट फॉर द दिल्ली branch located inside India, it is physically possible for the company to keep a part of its core main books of the accounts there. क्योंकि वो क्या कह रहा है? ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द ब्रांचेस, दैट मीन्स आपने दिल्ली ब्रांच को ये वो नहीं दी जाएगी क्योंकि सारी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब क्या आपका सीधा सीधा मतलब ये आएगा 128(2) allows a branch to keep the books of accounts strictly related to the transaction affected the branch office, और 128(1) में बोलता है मेन या सारी बुक्स मैंडेट करता है कंपनी को फुल कंसोलिडेटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में स्टे एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर उसको शिफ्ट करना है या मेंटेन करना है कहीं और, इट मस्ट फाइल फॉर्म AOC5 एंड देन 7 days के अंदर अंदर ROC को बताएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आप लिखोगे वैलिड है, उसका ये कहना है। यहाँ पे ठीक है कि इनवैलिड है कि कंपनी ने जो है रूल 2014 के अकॉर्डिंग 188(2) में कंप्लाई कर रखा है मैंडेट्स क्वार्टरली रिटर्न फॉर फॉरेन ब्रांचेस, दस क्वार्टरली सबमिशन फॉर द लंदन ब्रांचेस फुल्ली लीगल कंप्लायंस। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128 of the Companies Act 2013 requires can require every company to prepare and keep the books of accounts and other relevant books and papers and the financial statement at its registered office. It also provides that all or any of the books of accounts may be kept at such other place in India as the board of directors may decide. Where such a decision is taken by the board, the company shall within 7 days thereof file with the registrar a notice in writing as per Rule 2A of the Companies Accounts Rule 2014 in the form AOC5 giving full address of that other place. तो इसीलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में PPK Limited should be prepared and maintained at registered office in Hyderabad. However, the same can be maintained in the respective branches if the board of directors have decided so and intimated the registrar a notice in the writing within 7 days thereof, giving full address of that other place that is other than registered office. Hence, the objection of Naveen is valid as intimation to the registrar is not specified in the question. फाइन। लेकिन दूसरा प्रोविजन क्या कहता है? दूसरे के लिए हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे वेयर अ कंपनी एज अ ब्रांच ऑफिस इन और आउटसाइड इंडिया इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन complied with the requisite provision of section 128(1) if proper books of accounts relating to the transactions affected at the branch office are kept at the office properly रख रखे हों and proper summarized returns are sent on periodical basis by a branch to the company at its registered office or other place. As per Rule 4(1) of the Companies Accounts Rule 2014, summarized return of the books of accounts of the company kept and maintained outside India shall be sent to the registered office at quarterly intervals, which shall be kept and maintained at the registered office of the company and kept open to the directors of their inspection. Since London office was sending summarized return, इसलिए Naveen is invalid for its objection. ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट है यही, ऐसे ही करना है। जब इसमें क्वेश्चन में गलती रखा, दिस इज नॉट इनवैलिड, दिस इज अ वैलिड ऑब्जेक्शन। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1C, फॉर मार्कर मिस्टर एल
was employed as a fashion designer in Elegant Textile Limited, a public limited company in Gurgaon, Gurugram, India during the financial year 23-24. He had efficiently provided his services for 183 days during the website period. On 1st April 2024, Mr. H, the human resource manager of Jeff Fashion Limited Paris, offered him a better employment opportunity in such company. On 2nd April 2024, Mr. L left India for taking up employment as a production controller at Jeff Fashion Limited in Paris. On 30th April 2024, he flew back to India for a 10 days family function in Manali, India. On his return for attending family function 30th 4 2024 in the latter provision FEMA Act elicited current residential status और आपको जब वो रिटर्न हुआ तब और in case instead of vacation he joins in employment in an Indian company after arriving in 30th 4 2024. FEMA का अकॉर्डिंग बताना है. सबसे पहले तो PRI क्या होता है? पर्सन रेजिडेंट इंडिया का मतलब क्या होता है? FEMA के अकॉर्डिंग LLP के अकॉर्डिंग तो 120 days और मोर, पर FEMA के अकॉर्डिंग more than 182 days, not equal to be for 182 days, more than 182 days during the course of preceding financial year. But does not include a person who has gone out of India or who stays outside India for on taking up employment besides with the other specified purposes outside India. मतलब उसने employment ले रखी है और business ले गया है, किसी भी और चीज के लिए गया है बाहर, अगर वो और पीरियड नहीं पता वो कब आएगा, तो हम उसको क्या मान लेते हैं, उसको वो एक्सेप्शन है PRI. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड माना जाएगा. कब से? जब वो गया था 2/4 को, है ना. ऑन 2/4 ही लेफ्ट इंडिया. 2/4 को क्या था तब, टिल द टाइम ही वर्क्स इन जेफ फैशन लिमिटेड इन द पेरिस एज इट हैज गॉन आउट द इंडिया फॉर ऑन टेकिंग अप द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. जब वो 10 दिन के लिए आया तब भी वो क्या माना जाएगा, PROI माना जाएगा. तब भी उसका रेसिडेंशियल स्टेटस वही रहेगा. लेकिन अगर वो परमानेंटली इंडिया आ रहा है तब वो हम मानेंगे उसका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. अगर वो परमानेंटली बाहर चला गया है, भाई वो कुछ दिन के लिए आ रहा है, तो हम उसको थोड़ी ना बोल देंगे भाई रेसिडेंट इन इंडिया है. नहीं, वो आउटसाइड इंडिया रहेगा. लेकिन अगर वो परमानेंटली इंडिया आ रहा है वापस, देन वी कैन से यस ही इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. देखो, under Section 25 of the FAME Act 1999, person resident in India means a person residing in India for more than 180 days during the course of preceding financial year, but does not include a person who has gone out of the India or stays outside India for on taking up employment outside India becomes person resident outside India from the date of leaving India. So, छोड़ के चला जाता तब. यहाँ पर person who stays in India for on taking up employment in India, यहाँ पर वो इंडिया आ रहा है. ठीक है. A person who comes to stays in India for or on taking up employment in India becomes person resident in India from the date coming to India. जब वो इंडिया आया तब वो माना जाएगा PRI. तो इसमें देखो L स्टेट इन इंडिया 183 days, लेकिन यहाँ पर वो चला गया 2/4 को, तो इसीलिए वो PROI बन गया. Return on 30th 4 for family function, he remains person resident outside India. Returning for a short 10 days vacation family function does not change his status back to PRI, as he did not return for taking up employment. Business was uncertain, stay in India. Uncertainty आता है तब भी मान लेते. तो ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट अगर कर लेता है, वो ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट करे तो PRI बन जाएगा वो, बिकॉज ही केम टू इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. ठीक है. Section 48 variation requires 75% written consent and NCLT application, 10% dissenting shareholders within 21 days. 128 रूल क्या कहता है, डोमेस्टिक ब्रांच बुक्स अलाउड एट ब्रांच. ठीक है. कब होएगा उसका भी वही 7 days का है. ROC को बताओगे, अपना वो फॉर्म भरोगे. फॉरेन ब्रांच रिटर्न रिक्वायर्स क्वार्टरली. और फेमा में क्या है, गोइंग अब्रॉड फॉर जॉब इमीडिएट PROI बन जाता है. इंडिया में आ रहे हो जॉब के लिए तो इमीडिएट PRI बन जाते हो. ठीक है. Now 2A. Referring to the provision of the Companies Act 2013, answer the following. So, what is the type of resolution to be passed and maximum number of person to whom an offer by private placement? किस टाइप का हमें
रेजोल्यूशन पास करना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, बता दो। स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। और क्या? और कितने बंदे मैक्सिमम? 50 और 200? A private placement shall be made only to a selected group of persons who have been identified by the board, whose number shall not exceed 50 or such higher number as may be prescribed. But here कितना prescribe हो रखा है? 200। ठीक है, 50 या उससे ज्यादा जो भी प्रेस्क्राइब कर रखे हो। तो क्या प्रेस्क्राइब कर रखा है? 200 प्रेस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, एक्सेप्ट qualified institutional buyers and employees of the company being offered under scheme of ESOP shall not be considered the limit of 200। ठीक है, ओके। तो उसको लिखे पूरे को, कैसे कैसा उसका वो बता दो। सेक्शन provides the law section 42 read with the rule 40 on the Companies Act, Companies Rule 2014 क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन एंड मैक्सिमम पर्सन। Resolution requires a special resolution passed by the shareholders for each offer or invitation. Maximum person कितने हैं? 50% है। यहाँ पे हायर जो भी प्रेस्क्राइब कर रखे हैं persons in the aggregate in the financial year, excluding qualified institutional buyers, QIBs वगैरह, employees जिनको shares दिए गए हैं ESOP के द्वारा। कंपनी must allot securities within 60 days। कंपनी को 60 दिन के अंदर अंदर क्या करना होता है? अलॉटमेंट करनी होती है सिक्योरिटीज की फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। हमें एप्लीकेशन मनी हो गया है रिसीव, तो 60 डेज के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट कर देनी चाहिए। द कंपनी फेल्स टू डू सो, इट मस्ट रीपे द एप्लीकेशन मनी विद इन 15 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, दैट इज विद इन 75 डेज पैसे वापस कर दो। और अगर वो 15 दिन के अंदर नहीं दे पा रही तो फिर आप रीपे करोगे मनी द इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 60 डेज, 12% पर एनम के हिसाब से। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहाँ यूटिलाइज होगा? इसमें सेक्शन 42(6) एंड 42(8) कंपनी कैन नॉट यूटिलाइज मनी रेज्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट अनलेस, वो कभी भी वो नहीं कर सकती यूटिलाइज किसी और चीज में। अलॉटमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, जब तक अलॉटमेंट पूरा ना हो गया तब तक आप यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फॉर्म PAS3 इज फाइल्ड विद ROC विद इन 15 डेज ऑफ अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट 15 दिन में रिटर्न कर दिया होगा उसके बाद, अगर कुछ ऐसा रिटर्न वाला होगा तो इमीडिएटली नहीं हो सकता। ठीक है, Rule 14 of the Company's Prospectus and Allotment of Securities Rule 2014 requires prior approval of shareholders of the company by a special resolution for each of the private placement offers or invitation. It is further provided that this sub-rule should not apply in case of offer or invitation for non-convertible debentures। अगर ऐसे debentures है जो non-convertible है उनके ऊपर ये apply नहीं करता है। जहाँ पे proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit specified in clause C of subsection 1 of section 180. In such a case, the relevant board resolution under clause C of subsection 3 of section 179 would be adequate. तो इतना ये इतना सेक्शन, इतना क्लॉज, इतना सबसेक्शन ये लिखने की जगह अब सीधा ये लिख सकते हो, provide further that this sub rule shall not apply in case of offer of invitation for non-convertible debentures where the proposed amount to be raised through such offer or invitation does not exceed the limit as prescribed। ठीक है, कि आप क्या करोगे? नहीं, ये किस पे नहीं अप्लाई करता? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पे, जहां पे प्रपोज अमाउंट कोई भी प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट से ज्यादा कहाँ नहीं हो। Provided also that in case of offer or invitation for non-convertible debentures where proposed amount to be raised through such offer or invitation exceeds the limit, लेकिन यहाँ पे exceed कर गई limit, it shall be sufficient if the company passes the previous special resolution only once in a year। तो वो माना जाएगा, लेकिन जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो आप खाली साल में एक बार ही करोगे तब भी चलेगा। फॉर ऑल द ऑफर्स एंड इन्विटेशन फॉर सच डिवेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर, एक ही बार ही करोगे अगर पूरे साल का, तो जितने आप बारी अब कर लो। ठीक है, फॉर ऑल द ऑफर्स और इन्विटेशन फॉर द ईयर, तो माना जाएगा वैलिड। ठीक है बेटा, उसके बाद
आपको फिर क्या लिखना है कि ये रेजोल्यूशन इसलिए पास हो जाना चाहिए, द रेजोल्यूशन विल बी पास्ड। उसके बाद प्राइवेट प्लेसमेंट शैल बी मेड ओनली टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन जिसका जो क्या है हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड whose number shall not exceed 50 or such higher number as will be prescribed in the financial year। अब रूल के हिसाब से rule has prescribed an offer or invitation to subscribe securities under private placement shall not be made to the person more than 200 in aggregate in the financial year, provided any offer or invitation made by the qualified institutional buyers which are QIBs and ESOP employees जो है उनको अगर हम दे रहे हैं तो उनको हम कंसीडर नहीं करेंगे ये 200 की लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त। और जो NBFCs है which are registered with the RBI and housing finance companies which are registered with the National Housing Bank, if they are complying with any regulations made by the RBI or NHB यानी कि National Housing Bank in respect of offer or invitation to be issued on private placement basis, they need not to comply with the rule। मतलब अगर कोई NBFC है या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसको अगर प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो उसको ये कंपनीज एक्ट का ये जो रूल है इसको कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो RBI के अकॉर्डिंग चल रहे हो या जो भी नेशनल हाउसिंग बैंक है उसके अकॉर्डिंग अपने नॉर्म्स को पूरा कर रहे हो। तो आपको सही है कि कोई स्पेसिफिक रूल बना रखा है किसी कंपनी के लिए तो सॉरी एक्ट बना रखा है तो हम वो पहले क्या होगा डोमिनेट करेगा वो प्रिवेल करेगा रेदर देन कंपनीज एट 2013 तो वही बोल रखा है। Thus, based on the above, maximum number of persons to whom an offer of by private placement in the financial year will be determined। ठीक है, simple। Now, सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग ही कंपनी मेकिंग एन ऑफर और इन्विटेशन अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट उसको अलॉट कर देनी चाहिए सिक्योरिटी 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, राइट। और अगर वो नहीं दे पाई 60 डेज के अंदर अंदर फिर उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन मनी की within 15 days from the expiry of 60 days, and if the company fails to repay the application money within the aforesaid period, it shall liable to repay the money with interest at the rate of 12% per annum from the expiry of 60th day। और कंपनी को ये मनी को यूटिलाइज नहीं करना चाहिए जो भी उसने प्राइवेट प्लेसमेंट से उठाया है अनलेस अलॉटमेंट इज मेड एंड द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। ठीक है, और द रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 15 days। Return of allotment shall be filed with the registrar within 15 days from the date of allotment। Hence, it can be utilized the money thus received once the return has been filed in the register। इससे वो पैसे जो है वो यूज कर सकती है ना। उसने ये लिखा था ना कब कंपनी जो स्टार्ट कर सकती है यूटिलाइजिंग द फंड्स रिकवर्ड बाय इट फ्रॉम सच प्राइवेट प्लेसमेंट, तब कर सकती है वो। 200% 60 डेज अलॉटमेंट 15 डेज का रीपेमेंट 12% का इंटरेस्ट। नाउ सेकेंड बी 2B, in the circumstance when Mr. M and Mr. P joint shareholders है Primal Private Limited holding 500 equity shares having conflicting views on one special business related to proposed changes in the article of association। At the extra general ordinary meeting यानी कि वही EGM में Mr. M is endorsing the resolution and Mr. P is dissenting। M कह रहा है हाँ ठीक है ओके डन है लेकिन P मना कर रहा है। Determine the procedures for casting the vote in the event of such situation as per guidelines outlined in the Companies Act। ओके ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है एक कह रहे हैं हाँ ठीक है भाई एक कह रहे हैं मना कर रहे हैं किसकी चलेगी टेबल एफ। क्या कहता है ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी जिसका नाम पहले आएगा वो करेगा प्रिवेल उसकी चलेगी। As with the Companies Act 2013, in case of joint shareholders, they must concur in voting unless the articles provide to the contrary। और क्या कहते हैं रेगुलेशन की टेबल एफ के अकॉर्डिंग voting in case of joint shareholders is done in the order of seniority which is determined on the basis of the order in which the name appears to the register of members। इसका नाम पहले लिखा जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। ठीक है, joint shareholders have a right to instruct the company as to the order in which their name shall appear। और वो joint holders है उनको दे जाती है क्या राइट कि तुम बताओ पहले हम किसका नाम लिखे रजिस्ट्रार में सॉरी रजिस्टर में। तो अकॉर्डिंगली मिस्टर एम और मिस्टर पी है इट इज टू बी सीन एज टू हुज नेम अपीयर फर्स्ट किसका पहले नाम आएगा in the register of the members and then they can decide whether to vote in cast in the favor of resolution या फिर against जाना उसके। ठीक है,
ओके, लिखते हैं इसके बारे में। As the Section 106 of the Companies Act 2013 read with the Regulations 52 the Table F Article of Association. In case of rent holders, the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy, shall accept to the exclusion of the voters of the other joint holders. For this purpose, seniority जो है वो आ जाएगी by the order in which the name stands in the register of the members of the company. इसलिए हमेशा एम और पी जो है शेयर्स को ज्वाइंटली होल्ड कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आ रहे हैं, एम कह रहे हैं एंडोर्स करो, पी कह रहा है डिसेंट करो। तो हम देखेंगे रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स में कौन पहले है, विच एवर ज्वाइंट होल्डर्स नेम पहले, तो इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स गिवन टू द सीनियर ज्वाइंट होल्डर और उसी का नाम। अब यहाँ पे हम इससे नहीं मानेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि एम पहले है कि पी पहले, इसी केस में ये नहीं है। चलो, फर्स्ट नेम विंस, ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर नेम वोट एक्सक्लूड्स द ज्वाइंट होल्डर्स। उसके बाद है ओकारा लिमिटेड, A company having net worth of 110 करोड़ and turnover जो 450 है, wants to accept deposit, उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करने हैं जी। Refer to the provisions of Companies Act 13, decide whether the above company can accept deposit from the public. पहले ये बताओ पब्लिक से कौन सी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट? एलिजिबल कंपनी। और एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी हैविंग अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीस इक्वल और मोर देन 100 करोड़ रुपीस, उसका क्या होना चाहिए? नेटवर्थ। यहाँ पे क्या 110 करोड़ है, और टर्नओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीस। यहाँ पे टर्नओवर इसका क्या हो, 500 करोड़ हो या उससे ज्यादा हो, यहाँ बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं। एंड विच इज ऑब्टेन द प्रायर कंसेंट ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, पर इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, 100 से ज्यादा हो टर्नओवर या फिर 500 से ज्यादा हो, सॉरी 500 से ज्यादा टर्नओवर या 100 से ज्यादा उसकी नेटवर्थ हो, पर उसके पास क्या होना चाहिए? कंसेंट तो होना ही चाहिए द कंपनी इन द जनरल मीटिंग बाय मींस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, और वो रेजोल्यूशन को किसको फाइल करेगा? आरओसी को फाइल कर देगा। तो ओकरा लिमिटेड के ओकारा लिमिटेड के पास 110 करोड़ का नेटवर्थ है, यानी कि वो एलिजिबल कंपनी है, इसलिए वो एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक। ठीक है, 76 read with the rules to 1E Companies Act acceptance of deposit in 2014 eligible company authorized to accept a deposit from the public company means a public company having net worth 100 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा, and which has obtained the prior consent in the general meeting with the special resolution and filed with the ROC। एप्लीकेशन क्या हो गई? तो इसलिए ये सोकारा लिमिटेड की नेटवर्क क्योंकि ज्यादा है क्वालिफाई करता है एलिजिबल कंपनी के लिए, कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कंप्लाइंग विद द डिपॉजिट रूल्स। ओके, now to see Board of Directors of Cool Private Limited through a resolution passed in the board meeting granted authorization to Mr. Sharad, CEO of the company, to appoint 2 employees for the procurement department। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कूल प्राइवेट लिमिटेड का, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड मीटिंग के अंदर और ग्रांट की ऑथराइजेशन मिस्टर शरद को, जो सीईओ है कंपनी का, अपॉइंट करने के लिए 2 एम्प्लॉइज को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में। सब्सिक्वेंटली जो शरद उसने सिलेक्ट किया सुरेश को और हेमंत को फॉर द पोजीशन। हाउएवर आफ्टर 1 मंथ जब मिस्टर शरद उसने नोटिस किया अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस, लैक ऑफ ऑनेस्टी इन देयर ड्यूटीज, तो उसने डिसमिसल ऑर्डर कर दिया फॉर बोथ एम्प्लॉइज। Citing proper reasons, Mr. Suresh contested his dismissal in the court, arguing that the board had only empowered Mr. Sharad, कि बोर्ड ने दी थी पावर शरद को तो कि वो अपॉइंट करेगा, तो उसके पास डिसमिसल का पावर नहीं है, एंड हेंस डिसमिसल ऑर्डर इज इनवैलिड। अब ऐसे द वैलिडिटी ऑफ मिस्टर सुरेश आर्गुमेंट अंडर द प्रोविजंस जीसीए में। बताओ जी, सेक्शन 16 of General Laws Act says the authority having for the time being power to make the appointment shall also have the power to suspend। जिसके पास अपॉइंटमेंट की पावर होती है उसके पास सस्पेंड की भी पावर होती है, ठीक है, whether by itself or any other authority in exercise of that power। In the given question, क्या शरद के पास क्या है? ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू अपॉइंट, इसके पास यानी कि इस वजह से क्या है? पावर डिसमिसल या सस्पेंड भी है, इसलिए सुरेश की आर्ग्यूमेंट कि तुम्हारे पास डिसमिसल की बात नहीं है वो वैलिड नहीं है। चुप हो जाओ, जाओ यहाँ से। As per Section 16 of the GCA 1897, power to appoint to include the power to suspend or dismiss, where by any central act or regulation, power to make any appointment is conferred, then what? Unless a different intention है, जब तक कोई और इंटेंशन ना आ रही हो, अथॉरिटी हैविंग पावर टू मेक द अपॉइंटमेंट, अथॉरिटी के पास पावर है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है, अपॉइंटमेंट कर सकता है।
shall also have the power to suspend, जिसके पास अपॉइंटमेंट जो कर सकता है उसके पास सस्पेंड की भी पावर है, और डिसमिसल एनी पर्सन अपॉइंटमेंट बाय इट्स एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर। एप्लीकेशन टू फैक्ट क्या है? बोर्ड ऑथराइजेशन मिस्टर शरद सीईओ टू अपॉइंट प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉई। क्या था? बोर्ड ने ऑथराइज किया था सीईओ क्योंकि भाई तुम प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉइज को अपॉइंट करो। एक्सरसाइजिंग दिस पावर शरद के पास अब सुरेश और हेमंत ने अपॉइंट कर लिया, तो बाय वर्चुअल सेक्शन 16 जीसीए पावर टू अपॉइंट इनहेरेंटली includes statutory power to suspend dismissal such appointees unless explicitly restricted। जब तक वो कहता है भाई खाली अपॉइंट करने के लिए ये है, तो डिसमिस नहीं कर सकता। अगर इसने ये नहीं बोला है वो डिसमिस नहीं कर सकता है। तो इसलिए सुरेश आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड बाय मिस्टर शरद हैज फुल statutory power to dismiss employee he was authorized to appoint। dismissal order is legally valid, लीगल है और वैलिड है। ओके, now revision box सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना 200%, फाइनेंशियल ईयर पर फाइनेंशियल ईयर 200% है, 60 डेज के अलॉटमेंट है। फॉर्म पीएस 3 भरेंगे फंड यूजेस से पहले। 106 टेबल एफ क्या कहता है? जॉइंट शेयर से सीनियर होल्डर वोट करेगा, फर्स्ट नेम द रजिस्टर प्रीवियस। 76 क्या कहता है? एलिजिबल पब्लिक वर्ड जिसकी नेटवर्थ 100 या उससे ज्यादा, टर्नओवर 500 या उससे ज्यादा है। 16 अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैज एनहेंस्ड स्टैट्यूटरी राइट टू डिसमिस। नाउ 3A a bonus शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की जो बोनस शेयर्स है वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हैविंग एन आइडेंटिटी एंड वैल्यू कैपेबल ऑफ बीइंग bought एंड सोल्ड। इन्फरेंस in reference to the above line elaborate the prerequisites of issue of bonus shares as enlisted in the companies act। बोनस शेयर के बारे में बताना, प्रीरिक्विजिट क्या है, बोनस शेयर्स कब इशू कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले तो ऑथराइज्ड आर्टिकल्स में कोई डिफॉल्ट ना किया हो कंपनी ने, बोर्ड ने रिकमेंड किया हो, जनरल मीटिंग में ऑथराइज हुआ हो, है ना, पार्टली पेड अप शेयर्स कोई ना बचे हो, और अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो पहले उसको फुल्ली पेड अप बना दो, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है मतलब प्रिस्क्राइब्ड चीजें दे रखी है उनको फुलफिल कर लो, यही होता है। ओके, लेट्स सी provisions of law section 63 of the Companies Act 2013 treat with rule 40 of the company's share capital and debentures rule 2014 prerequisite क्या है, mandatory conditions for issue of bonus shares। सबसे पहले article authorization, authorize for the articles of the company, सबसे पहले तो articles से authorize होना चाहिए। board recommendation and GM approval क्या है, must be authorized in general meeting on the recommendation of the board of directors। क्या कौन authorize करेगा उसको? board of directors की recommendation पे general meeting में authorize होगा, ठीक है। थर्ड, नो डेट डिफॉल्ट, कोई भी कंपनी मस्ट नॉट हैव एनी डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी के इंटरेस्ट पे, एफडी के रीपेमेंट पे, या कोई भी डेट सिक्योरिटी पे आपने डिफॉल्ट नहीं कर रखा हो। और नो स्टैट्यूटरी ड्यूज डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज पे या एम्प्लॉइज पे, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस, ये वो नहीं होना चाहिए डिफॉल्ट। फिर फुल्ली पेड अप, यानी कोई भी अगर पार्टली पेड अप है तो उसको फुल्ली पेड अप बना दीजिए। राइट टू द बोनस अलॉटमेंट, सोर्स ऑफ बोनस इशू कहाँ से होगा? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल इंजेक्शन रिजर्व। बोनस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड बाय कैपिटलाइजेशन रिजर्व, तो दे रखा था कैपिटलाइजिंग रिजर्व, रिजर्व रेवेन्यू रिवैल्यूएशन वगैरह उसमें नहीं होता, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट से कभी भी नहीं होएगा। If complies with conditions prescribed, the company's rule 2014, the company which has once announced the decision of board recommending upon a share shall not subsequently withdraw the same। मतलब company which has once announced decision of board recommending bonus issue shall not subsequently withdraw the same। एक बारी अगर बोल दिया बोनस शेयर्स होंगे इशू, उसके बाद आप विड्रॉ नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, नहीं जी हम नहीं कर रहे, छोटा मन बदल गया, ठीक है। Forgetting to state that evaluation reserve cannot be used for bonus issue और मिसिंग रूल 14 वगैरह ये सब। लिस्ट ऑफ सोर्सेज क्या है, प्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, कंडीशंस क्या है, नो डिफॉल्ट किया हो, फुल्ली पेड अप हो, विड्रॉल नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 3B, QL Limited is a public limited company, fine, incorporated in सूरत गुजरात with 1200 members, 1200 members है। 10-12 को क्या हुआ, जनरल मीटिंग वाज कन्वर्टेड टू 14 मेंबर्स और प्रेजेंट। ओके, कोरम के बारे में
quorum section number, ठीक है। मिस्टर मोहन was acting as an authorized representative to body corporate का member जो है QL Limited के मिस्टर मोहन was counted as a single person in these 14 members present, ठीक है। श्याम one of the important members was absent. Chairman Mr. Rahi adjourned meeting taking plea and absence of Mr. Sham to same day and next day next week. यहाँ पर किस रीजन की वजह से एडजॉर्न हुई है मीटिंग की? इम्पोर्टेंट बंदा नहीं है इसलिए, ना कि कोरम की वजह से। बात समझ रहे हो मेरी? चेयरमैन ने मना कर दिया। एब्सेंस ऑफ मिस्टर श्याम, the member present the meeting venue awaiting to attend the opposed decision submitting that the majority of them present now shall be unavailable next week. वगैरह इतने सारे बंदे थे, सॉरी इतने सारे बंदे अवेलेबल थे, 14 थे, और एक बंदे की वजह से तुमने एडजॉर्न कर दी मीटिंग। हम नहीं कर रहे, वो अपोज कर रहे हैं। Whether requisite quorum to hold the meeting was as required in the case of public limit comprising the present in this case, or whether Rahi could adjourn the meeting in the current scenario. बताइए। इसके कुछ वो थे स्लैब्स, क्या थे स्लैब्स? कि अगर जो है मेंबर्स आपके 1000 से ज्यादा हैं और 5000 तक, 1000 to 5000 है, तो आपका क्वारम कितना होना चाहिए? 15 मेंबर्स का होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कितने मेंबर्स हैं? 1200। कितने बंदे होने चाहिए थे? 15 होने चाहिए थे। और एक और बात समझो, उसने एक बात बोली और यहाँ पे मैं 10-12 स्टार लगा दो चाहे तो। बहुत बच्चों को नहीं पता होगी, यहाँ ध्यान से भूल जाएंगे। क्या क्या लिखा है? मिस्टर मोहन was counted as a single person in the meeting taking plea and absence मिस्टर श्याम। मिस्टर क्यू मोहन कौन है? Acting as an authorized representative of two body corporates whose are members of QL Limited। 2 members थे, सॉरी 2 कॉर्पोरेट है, उसके एक ही बंदा आ रहा है। Secretarial standard के अकॉर्डिंग one person can be authorized representative of more than one body corporate. In such a case, he is treated as more than one member present in the company, sorry in the person, for the purpose of quorum. यानी कि 14 + 1 और कर दो 15%। अब उसको 2 मेंबर मान रहे हैं, क्या बोलेंगे कि भाई 15 बंदे थे, यानी quorum प्रेजेंट था, quorum था। और क्या बोल रहे? whether requisite quorum to hold the meeting is required in the case of this is present, तो yes it was। और whether Rahi could adjourn the meeting in the current scenario, मिस्टर श्याम एब्सेंट थे, क्या वो एडजर्न कर सकते थे? बताइए। नहीं, नो, because the requisite quorum was present, he cannot adjourn the meeting। कंपनी से 13 quorum for the public, देखो अगर 1000 से कम है तो 5 मेंबर्स, 1000 से 5000 है 15, 5000 से ज्यादा है 30। 113 read to secretarial standard 2 and authorize the representative of body corporate is deemed to be a member personally present। if one individual represent 2 तो हम उसको 2 मानेंगे for the quorum purpose। application analysis के total members कितने हैं? 1200 के 1000 से 5000 में आगे required quorum 15 members हो गए। अटेंडेंस 13 इंडिविजुअल से, ह्यूमन मेंबर्स से, और बाकी मोहन जो थे वो 2 को कर रहे थे तो 15 हो गए। फर्स्ट quorum present, yes। Total members personally present 15, 13 individuals through this, so फिर भी हो गया। Requirement of 15 members fully satisfied। Power of the chairman to adjourn, no, since the requisite quorum was present, the chairman of the chairman Mr. Rahi has no such right or power to adjourn the meeting on the plea of the absence of the particular member। Sham, adjournment was invalid। इस बेसिस पे तो नहीं होना चाहिए था quorum की कोई एक पर्टिकुलर बंदा प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो इम्पोर्टेंट ही हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है और कंस्ट्रक्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं एज पर इंटरप्रिटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट। बेटा कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन को हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे डू हैव डिफरेंट मीनिंग। देखो खुद ही देखो, इंटरप्रिटेशन यानी इंटरप्रेट करना, किसी का मतलब निकालना,
या जो मतलब है उसको इंटरप्रेट करना, एंड कंस्ट्रक्शन इज बनाना, हम बना रहे हैं, ठीक है, दे नहीं रखा साफ साफ प्लेन तरीके से, कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, हमें निकालना पड़ रहा है, बनाना पड़ रहा है। इंटरप्रिटेशन ज्यादा काम नहीं करवाता, नॉर्मली हम इनसे कर लेते हैं कि मतलब मान लो कि कोई एक वर्ड है जिसमें एम्बिग्विटी नहीं है तो हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, लेकिन जिसमें एम्बिग्विटी है उसको हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी उधर, ठीक है। इंटरप्रिटेशन इज द आर्ट ऑफ असर्टेनिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड, असर्टेन करना है कि क्या वर्ड का मीनिंग है, ट्रू सेंस क्या है उसकी, ऑथर क्या इंटेंड करता है, उसका क्या इंटेंशन था उसको बोलते वक्त या लिखते वक्त करते वक्त, प्लेन मीनिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, इंटरप्रिटेशन। लेकिन जहां पर मीनिंग प्लेन ना हो, एम्बिगुअस हो, ठीक है, वहां पर क्या करना पड़ता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन लाना पड़ता है। Conclusions drawn by means of construction are within the spirit, though not necessarily with the letter of law, ठीक है। देखो डिफरेंस देखो, आर्ट ऑफ ascertaining the true, plain and literal meaning of statutory word, ट्रू, प्लेन और लिटरल, और ये कहते हैं प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन, हमें बनाना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स लाइक बियॉन्ड द डायरेक्ट एक्सप्रेशन, जो डायरेक्टली नहीं कहा जा रहा, हमें उसका कंक्लूजन खुद निकालना पड़ता है, खुद ड्रॉ करना पड़ता है। स्कोप क्या है, लिमिटेड टू लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट, लेटर ऑफ द लॉ, जो भी लिख रखा होगा। ब्रॉडर स्कोप होता है, टेक्स्ट इज एम्बिगुअस हो, साइलेंट हो, स्पिरिट ऑफ द लॉ, यह स्पिरिट आत्मा लॉ की, और वो है लेटर ऑफ द लॉ। एप्लीकेशन अप्लाइड व्हेन वर्डिंग्स इज क्लियर, साफ हो, सिंपल हो, अनएम्बिगुअस है, यहाँ पे कब होता है, एम्बिगुअस हो, एब्सर्डिटी आए, कॉन्फ्लिक्ट आए, तब, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है अब इनके बारे में, ये इंटरचेंजेबली यूज हो जाते हैं, और कंस्ट्रक्शन में इंटरप्रिटेशन इंक्लूड होता है, ओके। कंस्ट्रक्शन बिगिंस वेयर इंटरप्रिटेशन एंड, जहाँ पे इंटरप्रिटेशन खत्म हो जाती है, जहाँ पे हम प्लेन सूखा सिंपल मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। व्हेन लिटरल इंटरप्रिटेशन फेल्स टू रिजॉल्व द एम्बिग्यूटी और द गैप इन द लॉ, कोर्ट रिसोर्ट्स टू प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इन मॉडर्न लीगल प्रैक्टिस बोथ द टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड सिनोनिमस, लेकिन थियोरेटिकली discovers जो हमारा इंटरप्रिटेशन है discovers the direct sense of the wording, while construction determines the legal effect and application to the unproved cases. Two terms, interpretation and construction, are usually interchangeably used to denote the process adopting the code to ascertain the meaning of the legislature from the word with which it is expressed. These two terms have different connotations. Okay, interpretation is a art of assessing the meaning of word and the true sense in which the author intended that they should be understood. Thus, where the court adheres to plain meaning of the language used by the legislature, it would be interpretation of the word. But where the meaning is not plain, the court has decided whether the wording was meant to cover the situation before the court. Here, the court would be resorting to construction. Conclusion drawn by means construction are within the spirit through, though not necessarily within the letter of law. Letter of law में ना हो लेकिन spirit में हो. So in practice construction includes interpretation and the terms are frequently used synonymously. उनको हम synonymously use कर लेते हैं. Okay. Now और ये बहुत अच्छी लाइन है, कंस्ट्रक्शन बिगिंस वेयर इंटरप्रिटेशन एंड्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, अच्छा रिवीजन है 63, बोनस इशू रिक्वायर्स अथॉरिटी, बोर्ड की और फ्री रिजर्व सीआरआर दे सकते हैं हम, कैन नॉट रिवैल्यूएट, मतलब जो रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है वो यूज नहीं कर सकते। कोरम 1000 से 5000 का 15 होता है। बॉडी कॉर्पोरेट रिप्रेजेंट्स काउंट्स फॉर ईच एंटिटी रिप्रेजेंटेड, इंटरप्रिटेशन फाइंडिंग लिटरल मीनिंग, कंस्ट्रक्शन एनी इन्फेरिंग लीगल स्पिरिट व्हेन एम्बिगुअस। ओके, नाउ 4A, income tax authority statutory body has gathered some information and is of the view that there has been a manipulation of the accounts. Manipulation हुई है, reflecting incorrect financial position of the company. Statutory body intends to get the account reopened, वापस से open करे to reflect correct financial position of the company. In the light of the company's 2013 elucidated the statutory provision governing the issue of reopening of accounts with the income tax. वापस से open कब हो सकता है? अब पहले सेक्शन बताओ इसका। सेक्शन 130, एप्लीकेशन देनी पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटी को, सेबी को, कोई और जो भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी होती है उसको, ठीक है। और ऑर्डर इज मेड बाय द कोर्ट टू कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन और ट्रिब्यूनल तब, और 8 फाइनेंशियल ईयर्स तक का ही यूज होता है।
आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि 130 के हिसाब से कंपनी शिल नॉट रीओपन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रीकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस एप्लीकेशन इन दिस रिगार्ड इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर एप्लीकेशन किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने, सेबी ने, कोई भी स्टेचुटरी रेगुलेटरी बॉडी उसने, कोई भी पर्सन कंसर्न है जिसको दिक्कत हो रही है उसको, एंड एन ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट, और जो ऑर्डर है वो किसने दिया, कोर्ट ने दिया, ऑफ द कंपनी जुरिस्डिक्शन और ट्रिब्यूनल टू द इफेक्ट दैट द रेलेवेंट अर्लियर का अकाउंट, जो भी अकाउंट है अर्लियर रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट है वो प्रिपेयर किया गया फ्रॉडलेंट मैनर में या affairs of the company were mismanaged during the relevant period, casting a doubt on the reliability of the financial statement। और कोई भी ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, तो वो उसमें ऑर्डर नहीं होगा। However, जहाँ पे डायरेक्शन दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फॉर कीपिंग द बोर्ड्स द पीरियड लॉन्गर देन 8 इयर्स, तो वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट में भी ऑर्डर टू रीओपन विद सच लॉन्गर पीरियड। अगर 8 साल से भी ज़्यादा कहीं पे होता है, किसी किसी को बोल देते हैं, तो वहाँ पर फिर 8 साल से ज़्यादा की भी मानी जाएगी। ठीक है, तो प्रोविजन ऑफ द लॉ सेक्शन 130 ऑफ द कंपनी एक्ट 113 रीओपनिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कंडीशन, eligible applicants can reopening of the books of accounts on recasting financial statements can only be initiated upon the application made by central government, income tax authority, SEBI, any other statutory regulatory body, any person concerned. Mandatory कोर्ट या एनसीईआरटी ऑर्डर होना चाहिए। रीओपनिंग कैन नॉट बी डन डायरेक्टली बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी से पास करवाना पड़ेगा ऑर्डर को, या फिर कोर्ट से कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में जो है कंपनी के। ग्राउंड्स फॉर ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, ट्रिब्यूनल और कोर्ट विल इशू ऑर्डर ओनली इफ सेटिस्फाइड दैट जो अर्लियर अकाउंट था वो फ्रॉडलेंट मैनर में बनाया गया या मिसमैनेज किया गया, कास्टिंग सीरियस डाउट ऑन रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रिब्यूनल मस्ट गिव अ नोटिस टू सेंट्रल गवर्नमेंट, आईटी अथॉरिटी, सेबी और एक्सटेंड कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन बिफोर पासिंग ऑर्डर। ऑर्डर देने से पहले रिप्रेजेंटेशन देखेंगी। टाइम लिमिट क्या है, 8 इयर्स का। नो ऑर्डर शैल बी मेड रीओपनिंग अकाउंट्स रिलेटिंग टू द पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अनलेस नीचे डायरेक्शन जो है एक्सटेंडेड पीरियड की वो हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4b, a dispute among the partners of LLP jeopardizes stability of the business। LLP में क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, स्टेबिलिटी नहीं रही। आउट ऑफ द टू पार्टनर्स वन ड्यू टू द क्वारल की वजह से, झगड़े की वजह से दो पार्टनर से एक अदर पार्टनर्स अलोन कंटिन्यू द बिजनेस, एक ही पार्टनर कंटिन्यू की बिजनेस। यू आर बीइंग एक्सपर्ट इन द लॉ रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन द प्रोविजंस गवर्निंग दिस। एक ही बंदा रह गया भाई, कब तक चलाएगा, सेक्शन 6 एवरी एलएलपी हैज टू एट लीस्ट टू पार्टनर्स, और अगर किसी भी टाइम पे एलएलपी में दो बंदों से कम हो गया 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा पार्टनर ढूंढ लो, नहीं तो बंद करके भाग जाओ। अगर एक ही पार्टनर रह गया 6 महीने के बाद, सारी लाइबिलिटी तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, देखो सेक्शन 6 ऑफ द एलएलपी एक्ट क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एवरी एलएलपी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 पार्टनर्स carrying business below minimum this if any at any time number of members जो LLP में वो reduce हो जाते हैं 2 से, and the LLP carries on the business for more than 6 months while the number is so reduced, sole remaining partner who carries on the business after those 6 months and who has knowledge of the fact, और जिसको knowledge is fact की that the business is carried on by, उन दोनों के पास क्या चला जाएगा, liability चली जाएगी, personally be liable for discharge of all the obligations debts of the LLP incurred during that period after 6 months। Winding up क्या है, NLP may be wound up by the NCLT if the number of partners is reduced below 2 for more than 6 months। तो ये भी हो सकता है कि जो NCLT है वो क्या बोले, भाई खाली करो। Explain the term generalia specialibus non-derogate in connection with the interpretation of status। बताओ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक बेसिक रूल है इंटरप्रिटेशन का कि इफ इट इज पॉसिबल टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी दो प्रोविजन के बीच में ऑन अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि वो आप कंस्टिट्यूट करो उनको हार्मनी लाओ उनमें।
अगर पॉसिबल नहीं है कि दोनों प्रोविजंस लाए जाएं या दोनों प्रोविजंस का इफेक्ट डाला जाए हार्मोनियसली, कोलिजन में बी अवॉइडेड बाय होल्डिंग दैट वन सेक्शन। ठीक है, कोलिजन को अवॉइड करना चाहिए विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर मेयरली प्रोवाइड्स फॉर एन एक्सेप्शन, a specific rule different from the general rule। ठीक है, तो इसलिए स्पेसिफिक रूल फिर ओवरराइड जनरल रूल। तो वहाँ पे स्पेसिफिक रूल जो है, ठीक है, जनरली जनरल रूल स्पेसिफिक रूल नॉन डेरोगेंट। जो जनरल रूल है वो क्या करेगा, कम रहेगा स्पेसिफिक रूल से, स्पेसिफिक रूल ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है, और ये कवर्ड आउट होता है जब हकीकत में कोई दिक्कत आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, ना कि मेयरली अपेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविजंस। ठीक है, नाउ generally a specialibus non-derogant is a fundamental legal maxim of statutory interpretation, which means general statements or provisions do not derogate from या derogate from यानी कि override नहीं करते स्पेशल स्टेटमेंट्स और प्रोविजन से। ठीक है, नॉन डेरोगेट यानी कि नॉट ओवरराइड। स्पेशल ओवरराइड जनरल लो। ठीक है, क्या है, वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरल प्रोविजन एंड स्पेसिफिक प्रोविजन द सेम स्टैट्यूट और डिफरेंट स्टैट्यूट, स्पेसिफिक प्रोविजन प्रिवेल करेगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोड फर्स्ट अटेम्प्ट के हार्मोनियस रहे, दोनों प्रोविजंस को इक्वली हम लेके जाए, लेकिन अगर रिकंसिलिएशन नहीं हो पा रहा है, इम्पॉसिबल, तो स्पेसिफिक रूल ऑपरेट एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। कंडीशन क्या होती है, अप्लाइज ओनली व्हेन देयर इज अ रियल कॉन्फ्लिक्ट, direct conflict between the general and special rules and the language admits with no other reasonable interpretation। कोई भी reasonable interpretation नहीं कर पा रहे, जनरल है, रियल है, ना कि apparent म्योर छोटा बहुत है। ठीक है, 130 reopening of accounts not required in salary order maximum preceding financial years। LLP section 6 operating within one partner 6 months से ज़्यादा हो गए हैं, अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी 6 months के बाद। मैक्सिमम कहते हैं जनरली स्पेशली बस स्पेसिफिक लॉ प्रीवेल्स ओवर जनरल लॉ। ओके, now 5A explain the protection available for whistleblowers। whistleblowers है, उनके लिए प्रोटेक्शन है सेक्शन 31 whistleblowers का इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एलएलपी। क्या कहता है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेवर ऑफ एनी पेनल्टी लेवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉई ऑफ द एलएलपी। अगर वो क्या कर ले, सेटिस्फाई कर ले क्या, कि वो पार्टनर या एम्प्लॉई क्या करेगा, एलएलपी का यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पे, या फिर व्हेन एनी इंफॉर्मेशन given by a partner employee whether or not during investigation leads to LLP or a partner or employee of such LLP being convicted, इन्वेस्टिगेशन ना भी हो रही तब भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दे जिससे उन पे शक हो या कुछ भी, कोई लीड ला रहा हो, तो नो पार्टनर एम्प्लॉई ऑफ द एलएलपी मे बी डिस्चार्ज डिमोटेड सस्पेंडेड जस्ट बिकॉज उसने विसल ब्लो करी है, उसको डिस्चार्ज कर दिया, डिमोटेड कर दिया या सस्पेंड कर दिया, थ्रेट कर रहे हो, हरास कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो सेक्शन 31 ऑफ द एलएलपी एक्ट क्या कह रहा है, विसल ब्लोइंग के बारे में, रिडक्शन और वेवर ऑफ द पेनल्टी सेक्शन 31(1) और सेक्शन 31(2) क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द retaliation, victimization। क्या, the court or tribunal may reduce or waive of any penalty leviable against any partner or employee of the LLP if satisfied that such person or employee has provided useful information, उसने useful information दिया investigation करते वक्त LLP के, और any information provided leads to the LLP or the partner employee being convicted in the LLP or any other act whether doing investigation or not। और इसमें no partner employee of an LLP shall be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed or any other manner discriminated just because he has whistleblown, merely because he provided the information or caused information to be provided during investigation। Okay, और उसको क्या हो जाएगी, पेनल्टी वगैरह भी कम हो सकती है, हो सकता है वेव ऑफ हो जाए या कम हो जाए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो। ठीक है, 5B Why is Golden Smith Limited prohibited from appointing Ms. Kukreja and Associates as a audit firm, and for how long does this prohibition apply? और ये कितना दिन चलेगा? ठीक है, Krishna and Associates is an audit firm having two partners, namely Mr. Krishna and Shyam.
Mr. Sham is also partner of the another audit firm जिसका नाम है Kukreja and Associates. Krishna Associates was appointed as the auditor in the company Gold & Smith Limited for the two consecutive periods of 5 years. That is year 2016 to 2026. Now, if Gold & Smith Limited wants to appoint Kukreja and Associates as its audit firm, it cannot do so because Mr. Sham जो है वो common partner है both the audit firms के. This prohibition is only for 5 years, that is up to 2331. After cooling period 5 years, Golden Smith Limited may appoint Mr. Okreja of भाई क्या लिख रहे हैं सेक्शन 141 में क्या होता है कि कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होता अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑर्डर के अगर जो पर्सन या फिर फर्म जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप में है कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसकी होल्डिंग एसोसिएट के साथ, ठीक है, इन सब के साथ अगर वो है तो Golden Smith prohibited है भाई from appointing Kukreja and Associates क्यों? क्योंकि जो ऑडिट फॉर्म है to the presence of Mr. Sham who is a partner in both Krishna Associates और Kukreja दोनों में ही है. So according to the rule, this creates a conflict of interest. This prohibition lasts for 5 years from the end of Mr. Krishna and Associates term as auditors, which is the case until year 2031. कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप अपॉइंट कर सकते हो, यहाँ तो कुकरेजा को कर लो, कृष्णा को कर लो, दोनों से किसी को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 5 साल तक का ब्रेक जरूरी है, दोनों में से किसी को भी हम अलाउ नहीं करेंगे 5 साल के बाद, मतलब यहाँ पे बोलो उनकी टर्म के बाद, ठीक है. नाउ एज सेक्शन 139(2) क्या कहता है कि no audit firm which has completed 2 consecutive terms of 5 years shall be eligible for reappointment of the auditor in the same company for 5 years for the completion of the term. Common partner prohibition क्या है? As on the date of the appointment, no audit firm having common partner or partner with outgoing audit firm whose tenure expired shall be appointed the auditor of the company for the period of 5 years. Why prohibited? क्योंकि जो कृष्ण एंड एसोसिएट्स है उसने 2 फुल टर्म्स अपने 10 साल की कंप्लीट कर लिया. अब जो मिस्टर श्याम है वो कॉमन पार्टनर है मिस्टर कृष्ण एसोसिएट्स के भी और कुकरेजा के भी. तो अपॉइंटिंग कुकरेजा एसोसिएट्स would violate the common partner prohibition rule, defeating the legislature. यहाँ पे सेक्शन लगेगा 41, ठीक है. अगर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोहिबिशन अप्लाइज फॉर द कूलिंग ऑफ पीरियड 5 इयर्स का, तो उसके बाद 2031 में आप क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो कुकरेजा एसोसिएट्स को, यहाँ पे कृष्णा को भी कर सकते हो. 5C स्टेट द प्रोविजन ऑफ द GCA 1897 related with the gender and number. Gender and number he includes she, ठीक है. और नंबर में सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल एंड वाइस वर्सा. सेक्शन 13 GCA. In all legislations and regulations, unless there is anything repugnant in the subject, words importing the masculine gender shall taken to include females, and words in singular shall include the plural and vice versa. Okay. In accordance with the rule that wording importing the masculine gender are to be taken includes female, word men may be properly held to include women. Pronoun he as a derivative may include या constitute to refer the person with a male or female. So the word his father and mother as the Open 125 is a act में have been constituted to include her father and mother, and a daughter has been held liable to maintain her father unable to maintain himself. Or connoting a common gender is available, but the word used conveys a specific gender. अब जैसे हिंदू एक्ट में लिखा है सन, तो वहाँ पे सन ही होगा क्योंकि वहाँ पे रिपग्नेंट टू एक्ट है, वहाँ पे सन सन ही माना जाएगा, डॉटर नहीं होगा, ठीक है. प्रोविजन लॉ सेक्शन 13 GCA जेंडर नंबर क्या बोलता है? इन द सेंट्रल एक्ट and regulation unless there is anything repugnant in the subject or this gender क्या है? Words importing masculine gender shall be taken include female, जैसे कि he includes she, his includes her. Number में words include singular shall include plural and the words in plural shall include singular. जैसे 125 में CRPC के phrase his father and mother was judicially क्या है? उसमें हम ये भी मानेंगे include daughters, holding that a married daughter having independent means is also liable to maintain her parents. जो अगर शादीशुदा औरत है वो इंडिपेंडेंट है तो वो अपने पेरेंट्स को लाइबल है कि वो मेंटेन करेगी अपने पेरेंट्स को, ये नहीं उनको छोड़ देगी. जैसे कि लड़का है वैसे ही लड़की भी करेगी केयर उनकी, ठीक है. और अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट, ये एक्सेप्शन वाइटल स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन आंसर में रखता है. ही इज इक्वल्स टू शी, वन इज इक्वल्स टू मैन. LP 31 whistleblowers get penalty reduction waivers and complete employment protection भी मिलती है. 139 या 141 में बोलोगे कॉमन पार्टनर्स फॉर्म बार्ड 5 years cooling period मिलता है. GCA में masculine includes feminine, singular includes plural unless until explicitly said.
Now, sixth question. Question number A. LKG Limited is a company having paid up share capital of 12.50 crore with total number of members being 3500. The board of directors have called general meeting to be conducted at 6/2023 at 2 p.m. On the date of meeting, the required quorum was not present. Present nahi tha quorum within half an hour and hence was adjourned to the next week. Same day at the same venue. In the reference to the above scenario, in the light of relevant provisions, आपको बताना है what will be the fate of the meeting in case two members in person were present at the adjourned meeting held in 13.5. In case 6/5/2023 को total members of the 16 थे was present, but the chairman owing to the unruly behavior of the some member during the meeting had adjourned the same. अगर किसी का behavior सही नहीं लग रहा और उसने तब adjourn कर दिया 13/5 को, तब क्या होता है? In the adjourned meeting only 3 members आते, तब क्या होता है? What will the fate of such adjourned meeting? In case जहाँ पे जो person है मीटिंग है was called by the requisitionist ने बोला था सेक्शन 100 में एक्ट में एंड सच मीटिंग द quorum was not present. उस वक्त requisitionist में quorum नहीं थी, फेट क्या होगा उस मीटिंग में? पहले तो quorum क्या है? 103. 1000 से ज्यादा होते हैं, 5000 से कम होते हैं, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए. कोरम अगर आधे घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या मानते हैं? मीटिंग को एडजर्न कर देते हैं एट द सेम टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम और प्लेस और सच अदर डेट और टाइम एंड प्लेस वेयर एज द बोर्ड में डिटरमाइन. और अगर लेकिन रिक्विजिशनिस्ट ने मंगाया, रिक्विजिशनिस्ट ने बोला है अंडर सेक्शन 100, तो उसको हम क्या मानते हैं? कैंसिल कैंसिल कैंसिल. अगर तुमने मंगाया है, हमें तुमने बुलाया और तुम ही नहीं आए तो फिर किस बात की मीटिंग? Provided that in case of adjourned meeting or a change of time or place of the meeting under clause A, company shall give not less than 3 days notice to the members either individually or publishing and advertising in the newspaper. मतलब अगर आप अगले हफ्ते कर रहे हो उससे 3 दिन तक कम से कम मिनिमम 3 days आपको नोटिस देना पड़ेगा. नॉट लेस देन 3 days नोटिस टू मेंबर. ठीक है, इंडिविजुअली या फिर आप एडवर्टीजमेंट में दे रहे हो, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, एक इंग्लिश में एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में विच इज इन सर्कुलेशन द प्लेस जहाँ पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का. अगर quorum प्रेजेंट नहीं होती एडजर्न मीटिंग में भी तो क्या होता है? मेंबर प्रेजेंट शैल फॉर्म quorum. ठीक है, अगर quorum ऑफ द गिवन कंपनी हैविंग 3500 मेंबर्स शैल बी 15. अब quorum नहीं प्रेजेंट तो आप क्या मानोगे? तभी कि quorum है. 2 मेंबर्स में प्रेजेंट मान लेंगे quorum. और अगर सेकंड पार्ट अगर माने कि 16 मेंबर्स थे और फिर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा तो फिर हमने एडजर्न कर दी और फिर 13 पे हमने खाली 3 मेंबर्स आए 13/5 को, तो क्या होगा? शेल नॉट कंस्टिट्यूट quorum एंड हेंस स्टैंड फर्दर एडजर्न. और तब भी हम फर्दर एडजर्न मान लेंगे उसको. ठीक है, क्योंकि तब quorum की वजह से नहीं हुई थी, quorum की वजह से होना जरूरी है. और थर्ड में अगर quorum प्रेजेंट ही नहीं था आधे घंटे में लेकिन रिक्विजिशनिस्ट ने मंगाई थी तो हम उसको क्या मान लेंगे? कैंसिल मान लेंगे. ठीक है, तो देखो प्रोविजंस ऑफ लॉ सेक्शन 13 एलकेजी लिमिटेड 3500 मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स माने जाएंगे फॉर quorum. फेट व्हेन 2 मेंबर्स प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग 103 एडजर्न मीटिंग थी, quorum प्रेजेंट नहीं था, आधे घंटे के अंदर अंदर क्या करी गई? एडजर्न करी गई. ठीक है, फिर मीटिंग 13/5 को बुलाई गई, लीगली प्रोसीड करी गई क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन वैलिड था. क्यों? क्योंकि 2 मेंबर्स प्रेजेंट थे, उनको हम quorum मान लेंगे. उसके बाद एडजर्न मीटिंग करी गई लेकिन अनरूली बिहेवियर की वजह से फिर 3 मेंबर्स प्रेजेंट थे तो हम क्या मानेंगे? quorum was present 16 मेंबर को. मीटिंग was adjourned due to disorderly unruly behavior. इसलिए वो quorum की वजह से नहीं एडजर्न करी गई. तो इसलिए क्या कंसेशन ऑफ द सेक्शन 103(3) डज नॉट अप्लाई. नॉर्मल quorum रिक्वायरमेंट 15 मेंबर्स की अप्लाई टू द एडजर्न मीटिंग. सिंस खाली 3 मेंबर्स प्रेजेंट थे तो इसलिए वहाँ पे quorum लैक कर रहा था तो हम उसको भी एडजर्न कर देंगे. फिर रिक्विजिशन अगर मंगवाई थी तो फिर अ मीटिंग was called upon requisition under section 100 and quorum is not present within half an hour, मीटिंग को हम कैंसिल मान लेंगे. does not get adjourned. Okay. ABC Corporation, a multinational conglomerate, plans to issue a prospectus in India for its upcoming public offering of securities. The prospectus includes statements made by various experts regarding the potential growth prospects and the financial performance of the company. Expert ने बोला था What are the requirements under section 388? हमें ऑलरेडी सेक्शन दे रखा है 388 के अकॉर्डिंग बताना रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय द एक्सपर्ट. एक्सपर्ट में क्या लिखा होना चाहिए? द प्रोस्पेक्टस ऑफ द सिक्योरिटी इशूड बाय द कंपनी
incorporated or to be incorporated outside India. And how do these requirements affect validity of the prospectus? जब कोई भी एक्सपर्ट अगर स्टेटमेंट देता है, इंक्लूड करता है अपनी प्रोस्पेक्टस में, तो उसको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? रिटन कंसेप्ट, रिटन कंसेंट होनी चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है इन द फॉर्म एंड कंटेक्स्ट इन विच इट अपीयर्स। मतलब जिस कंटेक्स्ट में वो बोलना चाह रहा है उसी कंटेक्स्ट में लिखा गया है, वो साइन करे, अपना लिख के दे, ताकि आगे जाके मुड़े ना कि नहीं भाई मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। So if the expert withdraws their consent, अगर consent को मना कर देता है before the prospectus is delivered for the registration, there is no statement indicating that expert has given any statement. हम नहीं मानते कि वो एक्सपर्ट ने स्टेटमेंट दी है और and not withdrawn their consent. The prospectus cannot be issued, इसलिए जो prospectus issue नहीं करते, circulate नहीं करते, distribute नहीं करते हैं. दूसरा, prospectus must have the effect upon application of rendering all the persons concerned bound by all the provisions section 33 and 40 as far as applicable. ठीक है, this ensures that all the relevant parties are subject to the legal obligations outlined in sections. मतलब क्या? मतलब ये जो prospectus है उसके पास इफेक्ट होना चाहिए एप्लीकेशन के दौरान, जो भी पर्सन कंसर्न्ड है उनको देंगे। सेक्शन 33 क्या है? इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और सिक्योरिटीज, एप्लीकेशन फॉर्म देंगे सिक्योरिटीज की इशू होने के, और उनको कैसे वो स्टॉक एक्सचेंज में डील करेंगे। अगर वो जो हमारी एक्सपर्ट की वो स्टेटमेंट है, अगर वो प्रोस्पेक्टस के फेस पे आ रही है ना, तो हम क्या मानते हैं? डीम टू बी इंक्लूड इन द प्रोस्पेक्टस और इशूड इन द प्रोस्पेक्टस। क्लियर बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो फेलियर हो जाता है, नहीं तो फिर आप मानोगे नहीं कि वो प्रोस्पेक्टस है भी। ठीक है, देखो प्रोविजन ऑफ द लॉ क्या है? क्रिएटेड ऑफ द कंपनी एक्ट 13, written consent of the expert 388. Prospectus containing expert statement shall not be issued circulating in India unless expert ने written consent नहीं दिया to the inclusion of the statement, the form and context in which it appears, कि उसी context में है जिस तरीके से appear हो रही है, and has not withdrawn his consent, और उसने अगर अपनी consent को withdraw ना किया before the delivery of prospectus. सेकेंड क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कंसेंट, यानी कि प्रोस्पेक्टस के पास एक्सप्लिसिटली स्टेट ऑन हिज फेस दैट एक्सपर्ट हैज गिवन एंड नॉट विथड्रॉन हिज कंसेंट. Binding nature security provision के prospectus must render all the persons bound by section 33 application form and section 40 status stock exchange listing as applicable. बाइंड कर देता है, बाउंड कर देता है by section 33 and section 40. Effect on validity of prospectus क्या है? If these requirements are not complied with, the issues or circulation of the prospectus in India is illegal and invalid माना जाएगा, और company and officers are punished with the fines and penalties. ठीक है, उसको पेनल्टी लग जाएगी, इनवैलिड माना जाएगा. Mr. Patel, a resident of India, wants to pay his child's education fees in US, decide whether transaction जो है वो, ओ भाई बहुत इजी, सबसे इजी आ जाएगा कि तो क्या ही बोलूं. ठीक है, तो बताओ मुझे, क्या बताओगे आप मुझे कि क्या आंसर होएगा इसका? क्या वो कर सकता है ट्रांजेक्शन? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन पूछा, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, यस इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. ठीक है, FEMA के अकॉर्डिंग पेमेंट फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली मेंबर्स residing abroad are considered current account transactions. Mr. Patel's payment for his child education fees falls under current account transaction. और उस पर्पस क्या है? Living and education expense of the family member residing abroad aligns with the definition of current account transaction, इसलिए वो दे सकता है. देखो, as to section 2J of FEMA, here we schedule 3 of the FEMA क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस मीन ट्रांजेक्शंस होते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस. ठीक है, करंट अकाउंट कौन से जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस नहीं होते, उनमें क्या आता है? रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंस, पेरेंट्स के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए जो बाहर रह रहे हैं,
and expenses in connection for and travel, education and medical care of the parents, spouse and children. पेरेंट्स के लिए, बीवी पति के लिए और बच्चों के लिए. एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन क्या है? पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस फॉर अ चाइल्ड स्टडीइंग इन द यूएस इज एक्सप्लिसिटली कैटेगराइज्ड एज एन एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन एजुकेशन अंडर सेक्शन 2J3. किसमें आता है ये? पेमेंट ऑफ एजुकेशन फीस. चाइल्ड जो बच्चा जो पढ़ रहा है आपका यूएस में, ये इसी एक्सपेंस में आता है. इसलिए पटेल की पेमेंट फॉर इस चाइल्ड जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में ही आएगी, लिबराइज स्कीम में आएगी, फ्रीली डेबिट कर सकता है 2.5 लाख तक. आगे भी होता है क्योंकि पढ़ाई का है. और क्या बोलते हैं, अगर मतलब बाहर की जो इंस्टीट्यूशन है उसको देख कर उतने बन रहे हैं तो अब उतने तक अलाउड होता है. लेकिन उसने यहाँ पे पूछा ही सिर्फ इतना है, उसने पैसे का तो कुछ पूछा ही नहीं. उसने ये पूछा खाली नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है. तो हम यही बोलेंगे भाई करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये 4 मार्कर है तो हमें बड़ा फिला के लिखना है, थोड़ा बड़ा के लिखना है, रिपीट करनी पड़ेगी 1-2 लाइन. ठीक है, बाकी सब कुछ वही है. ठीक है बेटा. Now section 1 adjourned for lack of quorum, members present for the form quorum requisition meeting cancel हो जाती है. फॉरेन पर्पस के लिए रिक्वायर्ड फॉरेन प्रोस्पेक्टस के लिए रिटर्न एक्सपोर्ट चाहिए होता है, कंसेंट चाहिए होता है, स्टेटमेंट ऑन फेस चाहिए होता है. ओवरसीज एजुकेशन में करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है, LRS 20,000. Now, first order appointment section 139, board within 30 days, member of the EGM, third 90 days, order rotation, individual एक term form 2, order removal ADT within 30 days, prior CG की approval फिर 60 days की, SR लगेगा. वेरिएशन ऑफ राइट डिसेंटिंग 48 सेक्शन है. डिसेंट कर रहे अगर 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स विद इन 21 साल, ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर सकते हो. एलिजिबल पब्लिक कौन सी होती है? नेटवर्थ 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, सेक्शन 76. कोरम ऑफ दी 103,000 मेंबर से है, यहाँ उससे कम है 5,000 है, 5,000 है तो 15, 5,000 से ज़्यादा है 30. LLP डिजिग्नेटेड क्या है? सेक्शन 7 ऑफ दी LLP स्टेज इन इंडिया मिनिमम 120 डेज. फेमा LRS के रूल्स लगेंगे, 2.5 लाख होता है. ठीक है. लास्ट मिनट रिवीजन, ऑल्टर का टेन्योर, रिमूवल, वेरिएशन. ब्रांच बुक्स क्या है? ब्रांच की बुक्स है. ब्रांच इंडियन ब्रांच रिपीट मतलब जो अब एक दिन की रिवीजन करोगे इसको जरूर पढ़ के जाना बेटा. फेमस रेजिडेंशियल स्टेटस, लिविंग इंडिया फॉर द जॉब अब्रॉड, PROI. डिपार्चर वगैरह का ये तो आपको पता ही होगा. प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम 200% कर सकते हैं विद इन 60 डेज. अलॉट कर देना. नॉन अलॉटमेंट के लिए आपको 15 दिन में अलॉट करना, रिफंड करना पड़ेगा, नहीं तो 15% का 12% का वो इंटरेस्ट दो. और आपको फॉर्म भरना पड़ेगा PS3 विद इन 15 डेज बिफोर द यूजिंग मनी. ज्वाइंट शेयर होल्डर्स, पहले इसका नाम आएगा सीनियरिटी वोट X2. पब्लिक डिपॉजिट एलिजिबल कंपनी करेगी. ठीक है. बोनस इशू किस किस पे होता है देख लो. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, CRR पे रिवैल्यूएशन बैंड है. बोर्ड रिकमेंडेशन कैन नॉट बी विथड्रॉन वंस अनाउंस्ड. कोरम एडजॉर्न मीटिंग. LLP सिंगल पार्टनर है, 6 मंथ से ज़्यादा हो गए सारे, आपके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी. LP रेजिडेंट पार्टनर मिनिमम 120 डेज रुका हो. ठीक है. जनरल कॉज में क्या होता है? हॉलीडे लिया, नेक्स्ट शॉपिंग डे लेंगे. सेक्शन स्टेट हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली लिखा हो तो आप जैसे टेरेन बोल रखा है वैसे करोगे. ठीक है. सेक्शन 13 इंक्लूड सिंगल इंक्लूड्स प्लूरल. सेक्शन 16 पार्ट ऑफ पॉइंट इंक्लूड्स पावर टू डिसमिस. इंटरप्रिटेशन क्या कहते हैं? यही क्या? स्पेशल ओवरराइड जनरल लॉ, कंस्ट्रक्शन बिगिंस वेयर इंटरप्रिटेशन एंड्स. ओके, ऑल द बेस्ट बेटा. थैंक यू.